नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for giving me this opportunity. I loved being here the other day and talking to the students, and I'm glad today to be talking to the faculty. Um, Mostly all of us who are in academia have come across the name Benjamin Bloom. So in this context of Bloom's taxonomy. And most of us might have also gone a bit deeper into the teachings of Benjamin Bloom and come across the three domains of learning. One is called the cognitive domain, the other is called the psychomotor domain, and the third one is called the affective domain. The affective domain is most likely the most misunderstood domain amongst these all, particularly from a teacher's perspective, like how to inculcate or how to develop the affective domain in students. So that's why today we plan to talk about the affective domain, understanding what exactly it is, and then understanding how we can actually inculcate this or develop this domain in our students. So I'll go in a bit of history, just a couple of slides, and then we will come to the main discussion. And we have 1 hour plus, I think, right? So back in 1956, Benjamin Bloom, he was looking into education, trying to understand what exactly he was trying to level various intellectual behaviors. So he was trying to see how people learn, what are different domains of learning. And for that, he looked at many exam questions, test questions. And he found out something which might be true till date for countries like ours, which was that 95% of the questions were dealing with memory. So जो सवाल होते थे वो इसी तरह की चीजें पूछ रहे होते थे कि इस लफ्ज का मतलब क्या है, इस चीज की तारीख क्या है. So memory questions. And of course, this was not a very encouraging finding. So he sat down and thought that this is maybe the lowest possible level of learning, कि आपको कोई चीज याद रह जाए. And then he thought, okay, what could be other levels? And so started the journey of this Bloom's taxonomy over about a decade. He called it the taxonomy of learning objectives. So what we call as Bloom's taxonomy is actually the taxonomy of learning objectives. So what objectives does a teacher set out with when going into the class from the very beginning, class 1 till higher studies? And we must have seen this pyramid-like shape of the taxonomy. I will have some slide of that as well. And we know that basically it's a pyramid shape because the concept behind it is कि जो नीचे के levels हैं वो foundation हैं, बगैर नीचे के level को achieve किए आप ऊपर move नहीं कर सकते. So you need to have memorized something, जैसे एक लफ्ज का मतलब आना जरूरी है, जिसके बाद फिर आप उसको conceptually और उसको apply करना और उसका analysis करना, ये सारा कुछ हो सकता है. So that's why we have this hierarchy. And then we have these domains, and I will discuss the domains in detail so we can go. So the first domain, as I said, is the cognitive domain. अच्छा, cognitive domain सबको समझ में आता है, और इसमें हम सबसे ज्यादा रहते भी हैं, which is not wrong. लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो शायद अगर आप अब तो आ गई है आपके पास ओबी आउटकम बेस्ड एजुकेशन आ गई है, जिसके अंदर ये मैपिंग्स होती हैं. आप लोग वैसे नहीं करते होंगे ना, इंजीनियरिंग में करते हैं, सोशल साइंसेज में अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन अब शायद एचईसी की तरफ से पुश है कि बाकी जगह पे भी किया जाए. तो वहां पे
हम मैप क्योंकि मैपिंग होती है, सो वी कैन इजीली सी कि कितने % ऑफ द करिकुलम is mapped और कितने % of the PLOs, program learning outcomes, are mapped on cognitive, on affective and on psychomotor. So it's actually maybe close to 80% is mapped on cognitive. And I wish that by the end of this workshop today, आप लोग इस बात से कन्विंस्ड हों कि ये 80% कॉग्निटिव पे होना एंड मे बी 10% साइकोमोटर और 10% अफेक्टिव पे होना एटलीस्ट अफेक्टिव के साथ ज्यादती है. तो अगर मैं इस बात में कामयाब हो जाता हूँ कि आप एट द एंड कहें कि हाँ वाकई यार अफेक्टिव को ज्यादा मिलना चाहिए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो आई थिंक देन द वर्कशॉप वाज सक्सेसफुल. तो कॉग्निटिव में एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉग्निशन, एवरीथिंग रिलेटेड टू नॉलेज, टू या जो भी चीज नॉलेज से डील कर रही है. सो इंफॉर्मेशन विच बिकम्स नॉलेज विच यू एक्सेप्ट, दैट्स कॉग्निटिव. साइकोमोटर डोमेन जो है ये बहुत ज्यादा बच्चों के लिए, छोटों के लिए बहुत एप्लीकेबल है और वहां पे उस स्टेज पे ज्यादा भी होता है बिकॉज दे लर्न दिस हैंड आई कोऑर्डिनेशन, दिस ब्रेन हैंड कोऑर्डिनेशन, चीजों को पकड़ना, चीजों को हाथ से फिजिकली मैन्युपुलेट करना. और बड़े लेवल के ऊपर भी स्किल्स में ज्यादा है, जैसे वेल्डिंग हो गई, सोल्डरिंग हो गई, ड्राइविंग हो गई और इस किस्म की चीजें. लेकिन जितना आप ऊपर जाते जाते हैं तो हमें पता है कि कॉग्निटिव डोमेन से हम ज्यादा काम लेते हैं. मे बी एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो मेन साइकोमोटर टास्क करता है वो टाइपिंग है, ठीक है. और हमारी इस पर बहुत बहस भी होती है, बहुत डिस्कशन भी होती है कि साइकोमोटर डोमेन की प्रेजेंस बहुत कम है तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है. फिर डिस्कशन ही आती है कि इसको बढ़ाने की जरूरत क्या है. तो लेकिन हम आज साइकोमोटर डिस्कस नहीं कर रहे, कॉग्निटिव डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल में, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ अफेक्टिव डोमेन क्या है. तो यहाँ पे ये 3 लफ्ज लिखे हैं थोड़ी देर के लिए. ये अच्छा, ये अभी तक जो मैं बता रहा हूँ इसमें मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये बिल्कुल डेफिनेशंस जो वाइडली अवेलेबल हैं और पब्लिश्ड हैं, तो उसमें बिलीव्स, एटीट्यूड्स और वैल्यूज की बात आती है कि अफेक्टिव डोमेन बेसिकली ये, यानी इफ वी आर समहाउ इन्फ्लुएंसिंग द बिलीव्स, the values and the attitudes of our students, तो इसका मतलब है कि हमने कामयाबी से अफेक्टिव डोमेन में भी उनकी डेवलपमेंट की है. ये एक फिगर है जो कि हमें बताती है कॉग्निटिव डोमेन के बारे में और उसके जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं. तो ये 6 लेवल हैं और इसमें पहला लेवल जो है वो रिमेंबर का है, जो जैसा मैंने बताया था मेक सेंस. बच्चा भी सबसे पहले चीजों के नाम सीखता है और उनको याद करता है. फिर उसके बाद अंडरस्टैंड, फिर उन अल्फाज के जो मतलब हैं सिर्फ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, उनका फहम भी आ जाता है. इट्स नॉट जस्ट द वर्ड जो उसने याद किया बल्कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी. फिर उसके बाद जो है वो उसको अप्लाई करने लगता है, फिर वो उसको सही जगह पे, पहले तो वैसे ही बोल रहा होता है, फिर उसको एग्जैक्ट के कहाँ पे प्लेस करना है, अप्लाई करना. फिर उसके बाद उसके अंदर ये फहम डालना कि वो उसको एनालाइज भी करे, तो मुख्तलिफ एंगल से उसके ऊपर सोचना, एनालाइज के लिए कि वो कुछ और प्रपोज करे, कुछ उसको एडिट कर सके, प्रिडिक्ट कर सके कि इसके बाद क्या आएगा, कौन से लफ्ज एक साथ आ रहे हैं. फिर इसी तरीके से एवेल्युएशन की स्टेज है कि वो ये भी देख सके कि कौन सा वर्ड, फॉर इंस्टेंस अगर हम वर्ड्स की बात करें, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये एवेल्युएशन आ गई. और फिर क्रिएट इज के आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां के आप नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, तो आप खुद से कोई नई चीज प्रपोज कर रहे हैं. तो ये कॉग्निटिव डोमेन का थोड़ा सा रीकैप. और साइकोमोटर डोमेन का रीकैप कुछ इस तरह है कि इसमें जो 5 लेवल्स हैं, वो पहला इमिटेशन है. अगेन गो बैक टू ए चाइल्ड और आप देखें कि वो सबसे पहले इमिटेशन से सीखता है, तो वो आपकी जो भी आप करते हैं आपकी नकल करता है. फिर उसके बाद वो मैन्युपुलेशन, हर चीज को हाथ में पकड़ना, कभी कभी मुंह के साथ उसको मुंह में डालना, ये करता है. फिर उसके बाद कोई प्रिसीजन आती है, तो वो ठीक तरीके से पिन पॉइंट करके चीजों को उठा सकता है और ठीक तरीके से उसको प्लेस करना सीख जाता है. फिर आर्टिकुलेशन आती है और आखिर में नेचुरलाइजेशन की, जी वो चीज जो है वो नेचुरली बिल्कुल he is doing it as if कि ये हमेशा से इसको करता आ रहा है. It becomes a part of his natural movements and natural behavior. Affective domain में भी इसी तरीके से 5 लेवल्स हैं लर्निंग के इस डोमेन के अंदर, और ये लेवल्स में आखिर में जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा वंस वी गो थ्रू द होल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन और आखिर में कैरेक्टराइजेशन, लेकिन मैं आखिर के लिए इसको छोड़ा हुआ है. हर एक के ऊपर एक स्लाइड है वंस वी गो थ्रू द कॉन्सेप्ट. तो जैसा मैंने बताया, अफेक्टिव डोमेन इज मेनली कंसर्न्ड विद 1
with how one deals or reacts emotionally to things or information. कि आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है, व्हाट डज दैट मीन? तो इसका मतलब बेसिकली ये कि आपके सामने कुछ हो रहा है, कुछ कहा जा रहा है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? हम ये तो आप सब मानेंगे ना कि अगर आपकी किसी इवेंट के बारे में, किसी चीज के बारे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपकी कोई फीलिंग नहीं है या आपके स्टूडेंट की कोई फीलिंग नहीं है, तो दैट्स प्रॉब्लम. मिसाल के तौर पे सिलिकॉन वैली बैंक आज से 4 दिन पहले जुम्मे को ही कोलैप्स हो गया था, मंडे को फिर हमें डिटेल में पता लगा. तो डू वी हैव सम फीलिंग्स अबाउट दैट? Can we think about the repercussions it is going to have for people living in the United States, for people living in the West in general, for us? ठीक है, तो अगर ये हो रहा है तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ऐसा होना चाहिए. अगर हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है, देन फॉर इंस्टेंस दिस इज एन एग्जांपल. इसी तरीके से एक एग्जांपल आजकल जो हम सबके जहनों पे सवार है, चैट जीपीटी. सो डू वी हैव सम फीलिंग्स रिगार्डिंग दैट? मिसाल के तौर पे ये मेरे स्टूडेंट्स के काम को कैसे अफेक्ट करेगा? इसी तरीके से क्या हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ऐसा है कि जो, तो मेरे लिए बड़े कंसर्न की बात होती है जब मैं क्लास में जाऊं और स्टूडेंट्स की कोई जो उनके अराउंड बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं. मिसाल के तौर पे ये जो चैट जीपीटी वाली चीज है, इवन दो दिस इज नॉट टुडेज टॉपिक, लेकिन मे बी दिस इज द इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी. आई अंडरस्टैंड कि चैट जीपीटी खुद से कोई इन्वेंशन एज सच नहीं है, इट्स जस्ट एन इम्प्रूवमेंट. और लेकिन it could be the straw that broke the camel's back. यानी इस प्लेटफॉर्म ने जितनी जल्दी ग्रो किया है, आई थिंक विद इन अ वीक उसको वो मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले हैं, जो कि पहले कभी सालों लग जाते थे, डेकेड्स लगते थे. और तो इट्स फिनोमिनल. और जितना पॉपुलर ये हो गया और जितना हमारी लाइफ्स को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिलखसूस टीचर्स को, बिलखसूस एजुकेटर्स को, तो इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल. और हमारी तरफ से रिएक्शन एज यूजुअल काफी स्लो है. तो आपने अभी तक कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्कशन एचईसी लेवल के ऊपर हो गई है, मुझे नहीं लगता कि डीन्स लेवल के ऊपर कोई हुई है, हालांकि होनी चाहिए. एंड यूनिवर्सिटीज, और दो दो रास्ते होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर इमोशंस. एक रास्ता होगा कि आप बंद कर देंगे, आप कहेंगे पाबंदी है, टीचर्स ने भी नहीं इस्तेमाल करना, स्टूडेंट्स ने भी नहीं करना, और इसको हम पकड़ेंगे और ये प्लेजियरिज्म है और सब कुछ. और दूसरा रास्ता एक होगा जो कि आईबी वालों ने, इंटरनेशनल बैकलॉरेट वालों ने ऑलरेडी ले लिया है, और वो ये होगा कि ना कैलकुलेटर को रोका जा सका, ना ट्रैक्टर को रोका जा सका, टेक्नोलॉजी को आप नहीं रोक सकते. आप अपने असेसमेंट टूल्स को चेंज करें और ऐसा बनाएं कि द अंडरलाइंग अजम्पशन इज कि वो चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आप उसको कहें कि आप इस्तेमाल करो. क्यों? क्योंकि जब आप रियल लाइफ में जाते हैं तो ये टूल्स तो आपके पास सारे अवेलेबल हैं. तो अब प्रॉब्लम्स की नौइयत डिफरेंट हो गई है और हो जानी चाहिए, और आपके सॉल्यूशंस की नौइयत भी होनी चाहिए कि आपने इसको इस्तेमाल किया. लेकिन एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो इमोशंस, एटीट्यूड्स अबाउट थिंग्स. सो क्या एटीट्यूड है आपका टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या एटीट्यूड है आपका और चीजों के बारे में? दिस इज द इफेक्टिव डोमेन. हम अभी थोड़ी देर में एग्जांपल्स लेंगे कि ये जरूरी क्यों है डेवलप करना, खास तौर पे बिल्कुल नॉर्मल हमारे क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट के अंदर. इसी तरीके से the right attitude would mean that students, for instance, are enthusiastic about learning. क्या आपको लगता है कि आप जब क्लास में जाते हैं तो स्टूडेंट्स उस तरह एंथुजियास्टिक होते हैं जैसे उनको होना चाहिए, या जनरली आपको फीलिंग आती है कि स्टूडेंट्स बस, अगर मैं माजरत के साथ ये कहूं कि स्टूडेंट्स बस आप लोगों की तरह ही बैठे होते हैं, जिस तरह इस वक्त आप बैठे हुए, बेजार नहीं, तो खैर मजाक करो, लेकिन अगर स्टूडेंट्स के चेहरों पे बेजारी नजर आए सीखने के हवाले से, तो अगेन दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड. देयर शुड बी सम एंथुजियाज्म. ठीक है, enthusiasm about having the opportunity to be in that class. आप याद करें कोविड के दिनों में, मुझे याद है कोविड के दिनों में जब फुल पाबंदी चल रही थी, तो एक दिन मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जनरल स्टोर गया, और बिल्कुल जब बहुत ज्यादा पाबंदी थी, तो हम जनरल स्टोर गए, और उस जनरल स्टोर में नीचे बहुत सी लाइटें शाइटें लगी हुई थी. बहुत अरसे बाद तक मैं और मेरा बेटा हम बैठ के उस एक्सपीरियंस को चेरिश करते थे कि यार इतना मजा आया था जनरल स्टोर जाके, चीजें देख के, लोग देख के, रोशनी देख के, खाली एक जनरल स्टोर जाके, वो चीज जिसको हम नॉर्मली फॉर ग्रांटेड लेते हैं. इसी तरीके से आपको पता है कि खाली ये अपॉर्चुनिटी मिलना कि सेहतमंद हो के क्लास में बैठे हैं, लोग हैं हमारे अराउंड, एक टीचर हमें पढ़ा रहे, सारा कुछ,
तो कुछ एंथुजियाज्म होना चाहिए, और फिर अगर वो कंटेंट इंटरेस्टिंग है, वो कंटेंट रेलेवेंट है और हमें कुछ सिखा रहा है, तो फिर तो एंथुजियाज्म की कोई बाउंड्स और लिमिट्स ही नहीं होनी चाहिए। तो अप्रिसिएशन मिलती है कि नहीं, फीडबैक मिलता है कि नहीं, मोटिवेटेड हैं, क्या एटीट्यूड है, और वेदर इट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स देयर पर्सनल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें अफेक्टिव डोमेन के अंडर कवर होती हैं। तो बेसिकली दीज आर ऑल क्वालिटीज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। तो हम कॉग्निटिव डोमेन में तो उनको सिखा रहे हैं, लेकिन अफेक्टिव डोमेन के जरिए इंश्योर कर रहे हैं कि इस सीखने का जो फॉर्मल प्रोसेस है, ये खत्म होने के साथ उनका लर्निंग प्रोसेस बंद नहीं हो जाएगा। किताब बंद, डिग्री मिली एंड दैट्स इट। ऐसा हो रहा है। ज्यादातर लोग तो सेलिब्रेट करते हैं हमारी सोसाइटी में आखिरी एग्जाम के आखिरी दिन को बाय टीयरिंग अपार्ट देयर बुक्स एंड कॉपीज। ये चीज मैंने देखी है, ऑब्जर्व की है, एक दफा हुई थी तो मैंने कुछ तस्वीरें भी दी थी। तो जो जमीन थी उस इदारे में वो सफ़ों से भरी हुई थी, बिल्कुल वाइट थी, क्योंकि सब ने ना अपनी कॉपियां किताबें फाड़। हैरान हो गया, व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ योर एजुकेशनल कैरियर। तो यहाँ पे दो कोट्स ऑफ द डे हैं टू स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन द इफेक्टिव डोमेन। एक जो है वो प्लेटो का जो है कि क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया कि इसको वेरीफाई करना इतना आसान नहीं है कि बाकी उसने कहा या नहीं, लेकिन ऑल लर्निंग हैज एन इमोशनल बेस। इस चीज़ पर मैं बहुत बात करूंगा आज, मैं इसको बहुत एक्सप्लेन करूंगा कुछ रिसर्च के जरिए, कुछ हिस्ट्री के जरिए, लेकिन वाकई आपको कोशिश होगी मनवाने की कि लर्निंग की जो बेस है वो कॉग्निटिव नहीं, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो असल में इमोशनल है। ठीक है, तो वो इससे क्या मुराद है अभी आएगा। और दूसरी चीज जो जिसको हम थ्रू आउट डिस्कस करेंगे, वो अल्लामा इकबाल का ये शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। ठीक है, नाउ इश्क इज अफेक्टिव डोमेन, इश्क इज हार्ट। ठीक है, इश्क इज इमोशंस। और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अक्ल जो है ना वो खड़ी है, बस देख रही है, सोच रही है क्या हो रहा है, कैसे होगा। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स बड़ा मेजर्ड सा, बड़ा ही रिस्क अवर्स किस्म का। तो ये हमें जो इससे पता लग रहा है इस शेर से, वो ये कि बड़े काम करने के लिए, बड़ी कुर्बानी देने के लिए, अगर आपके इंटेलेक्ट से आगे आगे या साथ साथ आपके इमोशंस नहीं चल रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो इमोशंस का सही जगह पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर not just for learning but also for leadership, for taking or for um, treading uncharted lands, जिसकी जरूरत है। इनोवेशन क्या है आज की दुनिया में? कौन सी कौमें आगे हैं? वही कौमें आगे हैं जो कि इनोवेट कर रही हैं, और इनोवेशन यही है। इनोवेशन बड़ा रिस्की काम है, किसी ने पहले नहीं किया है, तो हम कहते हैं बड़े दिल गुर्दे का काम है। तो वो दिल जो है यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, वो अफेक्टिव डोमेन है, वो इमोशंस है। अच्छा, नाउ टू स्टार्ट विद दिस रिसर्च। ये टैली शरोत एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस की, इसराइल की एक यूनिवर्सिटी में, और साथ में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। और इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च की। मैं आपको थोड़ा सा उस रिसर्च का बैकग्राउंड बता दूं कि इन्होंने लोगों को एक कुछ लोगों को लिया और उनको अपनी लैब में उनके दिमाग के ऊपर बहुत सारे सर के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के और एमआरआई से में गुजार के और सारा कुछ करके कुछ चीज़ें मेजर कर रहे थे मुख्तलिफ उनके दिमाग की एक्टिविटी के हवाले से। एंड दे वांटेड टू सी टू थिंग्स। एक कि आपको जब कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है, एनी एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो मेजर करना चाहते थे कि आपका दिमाग उस टाइम किस स्टेट में है। और फिर उसके बाद चंद दिन बाद, हफ्ते बाद, उनको बुला के बताया कि ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया था, ये मेड अप था, ये सच्चा नहीं था, ये गलत सी बात। मिसाल के तौर पे आपने पहले पहले दिन बुलाया और आपने उनको कहा समथिंग लाइक, कुछ भी, एनीथिंग मेड अप, के जी ये बसीर के जो बाल सर पे लगे हुए हैं ये असल में विग है। ठीक है, वो मान लिया सारे के सारों ने, और आपने जो है वो उनको और रिकॉर्ड कर ली। वह हफ्ते बाद वो आए और अब आपने उन सबको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी ये सच्ची नहीं थी, ये बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन है। तो क्या हुआ होगा जब आपने बताया सेकंड दूसरे हफ्ते में
मान गए होंगे सारे, उन्होंने जो ओपिनियन थी अपनी, या जो जो उनका फैक्ट था, जो कि जिस फैक्ट को पकड़ के बैठे हुए थे एक हफ्ते तक, उसको आसानी से छोड़ दिया होगा या नहीं? नहीं छोड़ा होगा ना, ठीक है, या कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा होगा, ठीक है। आई होप दिस इज नॉट अ जजमेंट ऑन माई हेयर, लेकिन यह है कि कुछ ने उसको नहीं छोड़ा। अब वो इस बात में इंटरेस्टेड थे कि किन लोगों ने नहीं छोड़ा, उन लोगों के दिमाग में जब ये इंफॉर्मेशन दी गई थी क्या चल रहा था। तो आपके ख्याल में जिन्होंने नहीं छोड़ा होगा, उनका उनका अगर मैं बिल्कुल क्लियर कहूं कि जी उनका इमोशनल स्टेट व्हेन दे रिसीव दैट इंफॉर्मेशन क्या होगा, यानी व्हेन डू यू स्टिक टू योर फैक्ट्स, व्हेन इज इट, जब आपकी इमोशनल स्टेट क्या है। हम रफली कह सकते हैं कि रेज्ड इमोशनल स्टेट हो, ठीक, यानी आप बहुत इमोशनल हो। तो उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों का एमिगडाला, ये जो आपका दिमाग का वो हिस्सा है जो कि इमोशंस को रेगुलेट करता है, तो अगर एमिगडाला जो है वो उस वक्त बहुत एक्टिव था, ठीक है, बहुत एक्टिव था, यानी कि आप इमोशनली चार्ज थे और आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिला, फिर आपने इसको जाने नहीं दिया, आप इसको पकड़ के बैठ गए, हालांकि वो आपको बता रहे हैं कि यार अल्लाह के बंदे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात गलत थी, लेकिन आपने नहीं उसको माना। इससे बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता लगती हैं इस रिसर्च से, यानी आप सोचें जरा, इससे ये पता लग रहा है कि हमारे लिए फैक्ट्स ज्यादा मैटर नहीं करते, बल्कि हमारे अपने इमोशंस ज्यादा मैटर करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में जो कुछ हो रहा है, क्या वो इस बात की दलील नहीं है? आपको कहना चाहिए आपको सर ये रिसर्च की जरूरत क्या थी, आप आके इधर देख लेते, ऐसा ही तो हो रहा है। दोनों साइड्स जो हैं, अगर हम कह दें कि दो हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, हैं वैसे ज्यादा, लेकिन दोनों साइड्स जो हैं अपने अपने फैक्ट्स को स्टिक किए हुए, और आप कोई भी किस्म की एविडेंस ले आए तो दूसरी साइड ने नहीं माननी, उनका नहीं, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली, तो अब और इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें यह पता लग रहा है कि अगर हमने फैक्ट्स, अभी हम तो पढ़ाने में फैक्ट्स सिर्फ नहीं पढ़ाते, हम तो पढ़ाने में बहुत से ऐसे आइडियाज या आइडियल्स भी बताना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पानी बचाना चाहिए, वाटर सेव करना चाहिए, ऐसा कोई फैक्ट तो नहीं है ना, ये तो एक बेहतर बिहेवियर है जो आप सिखाना चाह रहे हैं। यहां पे तो बात हो रही है फैक्ट्स की, तो अगर आपने फैक्ट्स पढ़ाने और दूसरा मूड में नहीं है, ठीक है, दूसरा इमोशनली प्रेजेंट नहीं है, शायद उसने इस बात को लेना ही नहीं है, मानना ही नहीं, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट नहीं। तो अगर आपने कोई और हायर गोल्स आपके जहन में हैं जो कि आपने अपने स्टूडेंट्स को देने हैं, विद रिगार्ड्स टू बिहेवियर, विद रिगार्ड्स टू एटीट्यूड, विद रिगार्ड्स टू कोई भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने बात की, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इमोशनली वो लोग आपके साथ हों, इमोशनली आप लोग एक पेज के ऊपर हों। और जितना छोटा बच्चा होगा ये चीज उतनी ज्यादा जरूरी हो जाएगी, जाहिर है। तो आप एक बच्चा है क्लास में और इस वक्त उसको कुछ मसला है, कुछ भी मसला है, वो अनकंफर्टेबल है, मे बी इट्स जस्ट कुर्सी कंफर्टेबल नहीं है, डू यू थिंक दैट चाइल्ड कैन लर्न समथिंग एट दैट मोमेंट? जब तक उसको वो चीज तंग कर रही है, तो वो तो इमोशनली मौजूद ही नहीं है कि वो ये कर सके। और ये मैंने बहुत रुडिमेंट्री सी एक एग्जांपल दी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो फिजिकल स्टिमुलस है, ठीक है, लेकिन कुछ भी, इफ ही और शी इज सैड, तो शायद आप नहीं उसको कुछ सिखा सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देयर इज अ लिंक एक्चुअली बिटवीन द कॉग्निटिव डोमेन एंड द अफेक्टिव डोमेन, यानी दिल का और दिमाग का, अकल का और इश्क का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, दे गो हैंड इन ग्लव। और ये बात एक अच्छे टीचर को, एक अच्छे पेरेंट को, एक अच्छे मुअल्लिम को समझ आनी चाहिए। और मैं भी बताऊंगा कि पहले ज़माने में समझ आती थी बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अभी जो है ना, जब से एजुकेशन ज़रा ज़्यादा ही कमर्शलाइज हो गई है, और जब से हमने पेरेंटिंग को आउटसोर्स कर दिया है, पेरेंटिंग भी अब आउटसोर्स है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल यूनिवर्सिटी वो सारा का सारा ये काम करेगा, हमने बस फीस जमा करा दी एंड दैट्स इट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। तो तब से ये मसले बहुत सीरियस हुए, बहुत ज़्यादा हुए, और उसके अगेन दुनिया की बहुत सारी ऐसी स्टेटिस्टिक्स हैं जो कि फिर हमें उसके समरात बड़े क्लियरली बताती हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन ये है कि ये सारा कुछ जो इफेक्टिव डोमेन के हवाले से है, इसको मास्टर करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत मुश्किल है और समझ में भी नहीं आता, अक्सर इस पे जोर भी नहीं दिया गया।
हम जब टीचिंग सीख रहे थे तो उस वक्त इसके ऊपर कोई जोर नहीं था, कोई बात नहीं थी, अल्फाज भी हमने नहीं सुने थे। तो ऐसा क्यों है? तो उसकी एक वजह, तो पहली वजह उसकी ये है कि जो रेने डेकार्ट है, मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो, फ्रेंच लफ्ज वैसे भी जरा मुश्किल होते हैं, लेकिन ये वो बंदा है जिसने के मैथ्स अगर किसी ने पढ़ी है तो कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स वाला बंदा, ये कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स उसको हम कहते हैं। तो इस बंदे ने, ही वाज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स जिसने के सारे का सारा फोकस डाल दिया थिंकिंग के ऊपर, सारे का सारा फोकस डाल दिया इंटेलेक्ट के ऊपर। ठीक है, मैं ये कॉल ले सकता हूँ इसलिए कि मेरी वालदा जो है ना इस वक्त एक अपॉइंटमेंट पे गई हुई है, तो मैं जस्ट ये चेक करना चाहता हूँ। बेटा जो है हमको लेके गया आज, तो वो जरा मुझे मिनट बाय मिनट बता रहा है। तो रेने डेकार्ट ने जो है ना सारा का सारा फोकस डाल दिया इसी बात पे कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, जो बड़ा मशहूर उसका जुमला भी है। लेकिन ये जुमला तो ये एग्जैक्टली नहीं बता रहा, लेकिन ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि थिंकिंग के ऊपर और इंटेलेक्ट के ऊपर एक डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस रखा गया। और अगेन ट्रेनिंग के एंड तक शायद आप लोग कन्विंस हो जाएं कि आपकी अपनी लेट्स से पेरेंटिंग के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पेरेंटिंग में हमारा एक बहुत बड़ा गोल शायद 90% बस बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। हम सारा वक्त उनको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सीखो, ये ग्रेड लो, ये वो, और वो जो दूसरी साइड है जो कि शायद इक्वली या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तकरीबन बिल्कुल निगलेक्ट होती है। क्यों? हम भले कहें कि नहीं हमारे वो भी बड़े करीब है, लेकिन हमारे पास कोई स्टेप्स नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है कि हम बता सकें कि हम वो कैसे कर रहे हैं, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो इंटेलेक्ट को देखा गया एज द लोकेशन ऑफ रैशनल थॉट। हमने भी थोड़ी देर पहले देखा कि रैशनल थॉट भी सिर्फ इंटेलेक्ट के साथ नहीं बल्कि इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, और उसको देखा गया मोर ट्रस्टवर्दी देन इमोशंस, सो इमोशन से। लेकिन अगेन हमने देखा कि कभी कभी ऐसा नहीं होता। न्यूरो साइंस ने भी डेस्कार्ट को प्रूव रॉन्ग किया है, और टाइम टू रिकॉग्नाइज द सेंट्रल रोल ऑफ इमोशंस। तो हम अब चाहिए कि हम इमोशंस का जो इतना इंपॉर्टेंट रोल है उसको रियलाइज करें और उसको इस्तेमाल करें अपने फेवर में, अपने स्टूडेंट्स के फेवर में, अपनी टीचिंग के हक में। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे रिलेशन बिटवीन थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। अब हम क्विक से एक केस स्टडी करते हैं, और एक सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी करते हैं। और वो ये है कि देखें, आपने किसी किसी बच्चे को, अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को इस्लाम में से कुछ सिखाना है, तो समथिंग जो है ना रिलेटेड टू इस्लाम, और आपके पास ये 3 चॉइसेस हैं। मैं आपको 3 चॉइसेस देता हूँ, और लेट से आपको कहता हूँ कि आप इसमें से कौन से वाला जो है ना पसंद करेंगे सिखाना, या आपको कौन से वाला आसान लगेगा। तो पहली चॉइस ये है कि डू वी वांट देम टू मेमोराइज, क्या आप ये चाहेंगे कि आप उसको कुछ एक आयत सूरत याद करा दें, लेट्स से, इज दिस इजी? या आप चाहेंगे कि आप उनको कुछ किसी एक सूरत या आयत का मतलब यानी नॉलेज कंटेंट दे दें कि ये इसका ये मतलब है? इज दैट इजी और इजियर? और तीसरा कि आप उस आयत या सूरत के अंदर जो नॉलेज है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं कि वो आप ये चाहेंगे कि यू ट्राई टू मेक हिम और हर वैल्यू एंड अप्रिशिएट दैट those concepts, and maybe even that he or she starts to characterize, यानी अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना ले, उनको इंटरनलाइज कर ले। ये 3 लेवल्स हैं। कौन सा सबसे आसान है? सॉरी, मेमोराइजेशन सबसे आसान है, सारे मानते हैं ना, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे मुश्किल कौन सा है? नॉलेज वाला, कि आप उसको सिखाएं भी और थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन ये जो तीसरा है, ये बाय फार बहुत मुश्किल नहीं, बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। और इसकी कितनी एफर्ट करते होंगे हम या हमारे टीचर्स, और कितना इफेक्टिवली करते होंगे, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन पता इस छोटे से उससे हमें ये लगा कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स, जो कि शायद हम मिस कर रहे हैं अपनी टीचिंग के अंदर, ठीक है। अब इस बात को समझाने के लिए कि यहां पे हाउ इज इट रेलेवेंट टू
इमोशंस, मैं एक मिसाल और देता होता हूं, और वो ये है कि मैं नॉर्मली अपनी क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूं, और अक्सर हमारी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का बाहर का भी एक्सपोजर होता है, तो आप लोगों का भी इसी तरीके से माशाल्लाह अच्छा एक्सपोजर है कि कैन यू थिंक और डू यू नो अबाउट सम मुस्लिम, कोई भी प्रैक्टिसिंग नॉन प्रैक्टिस जैसा भी हो, जो कि लेट्स से पाकिस्तान में भी ना हो, बाहर रहता हो, जिसको कि पॉर्क खाने का शौक हो। बड़ी मुश्किल सी बात है ना, मैं आधी जिंदगी बाहर गुजारी है, आई नेवर केम अक्रॉस एनीवन, यानी वो जो बिल्कुल वहां पे रहते हुए उनकी तरह हो गए हैं ना, वो भी मतलब वो गैर ज़िबा-शुदा गोश्त खा लेते हैं, लेकिन इसको बस वो ऐसे हराम समझते हैं कि जिसमें कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकती, ठीक। और लोग कहते हैं, अक्सर कभी ये डिस्कशन हो तो लोग कहते हैं कि तो ये क्या बड़ी बात हुई। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि ये लोग वहां पे रह रहे हैं तब से, जब हलाल गोश्त मिलता भी नहीं था, और पता नहीं क्या क्या मसाइल थे, लेकिन दे नेवर टच दैट, ठीक है, एंड दे कांट इवन थिंक ऑफ टचिंग दैट। इसी तरीके से आप कितने मुसलमानों को जानते होंगे जो कि सूद से बचे हुए हैं, जो कि नहीं जानते होंगे ना, बहुत मुश्किल सी बात है, इट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। और सिर्फ वो नहीं कि जी क्योंकि हुकूमत सूद हमारे नाम पे ले रही है और दे रही है, नहीं, वो लोग जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, खुद भी किसी न किसी तरीके से कुछ पैसे, गाड़ी, ये वो कुछ लिया हुआ है। हालांकि मेरे ख्याल में, मेरा थोड़ा बहुत जो मुताला है, जो सूद के बारे में जो हुक्म है, वो बहुत ज्यादा एलैबोरेट है, बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है, लेकिन एक फर्क है, और फर्क हमारी परवरिश का है। हमें जो पॉर्क है उससे नफरत अफेक्टिव लेवल के ऊपर है और दिलाई गई, सो इट्स समथिंग इमोशनल, इट फॉर्म्ड आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट, इट फॉर्म्ड आवर बिलीफ टूवर्ड्स दैट। इसमें समहाउ हमारे पेरेंट्स कामयाब हो गए, समहाउ, कैसे हुए मैं आगे चल के ये भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वो इसमें कामयाब हो गए। सो बिल्कुल आप सोच लें, आप में से कोई भी सोच ले, तो आपको पॉर्क का सोच के आपको डिसगस्ट फील होती है, सिंपल सी बात, डिस्कस्ट। तो आपको ये सोच के मैं इसको कंज्यूम करूं, अपना आप एकदम बहुत छोटा और बहुत घटिया बताता है, यू कांट इवन थिंक। लेकिन द सेम थिंग, इवन दो इंटेलेक्चुअली हमने ज्यादा सुना, ज्यादा पढ़ा, बार बार रीइंफोर्स किया गया सूद का, लेकिन हमें जो है ना उस वो चीज इमोशनल, यानी वो चीज अफेक्टिव डोमेन का हिस्सा या अफेक्टिव लेवल के ऊपर उसने हमें नहीं चेंज किया, तो हमारे इमोशंस उससे ऐसे नहीं बने। ये बात समझ में आ रही है लोग, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे हदीस लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ के नहीं सुनाता, लेकिन इसको बताने का भी एक मकसद है, और वो ये है कि हमारा जो क्रिएटर है अल्लाह सुब्हानहू तआला, और हमारे जो मुअल्लिम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस बात को समझते थे, यानी दे ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग इमोशंस। इसीलिए एक बहुत बुरी चीज सूद, इंटरेस्ट के हवाले से ऐसी हदीस है, ये हदीस इंटेलेक्ट को एड्रेस कर रही है या इमोशंस को? क्लियरली इमोशंस को, यानी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बेतहाशा काम किए हैं और बेतहाशा ऐसी उनकी सेइंग्स हैं जो कि इंटेलेक्ट से ज्यादा आपके इमोशंस को एड्रेस कर रही हैं। तो मैं ये सिर्फ यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो डिस्टिंक्शन है, ये हिस्टोरिकली टीचर्स को, असातिज़ा, पेरेंट्स को ये बड़ी क्लियर थी, और अगर क्लियर नहीं भी थी, तो जहां उन्होंने सक्सेसफुली इमोशंस को बीच में इन्वॉल्व किया, तो उन्होंने रिक्वायर्ड बिहेवियर अचीव किया विदाउट मॉनिटरिंग। तो कोई भी बाप, जब आप बाहर जा रहे होते हैं ना, तो बाप माँ नसीहतें करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाप या माँ को यह नसीहत करने की जरूरत पड़ती होगी कि बेटा खंजीर का गोश्त मत खाना, और हजारों आपको नसीहतें करते होंगे, लेकिन ये नसीहत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। वाई? बिकॉज दे नो, उनको ये बात पता है कि ये हमने अचीव किया हुआ है, और ये अचीव इसी तरीके से हुआ है क्योंकि ये अफेक्टिव डोमेन में जाके टैप किया, उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, और उनको उस चीज से इमोशनल लेवल के ऊपर। तो अब थोड़ी सी बात क्लियर होने लगी है कि हमें इमोशनल लेवल के ऊपर जो चीज हम अचीव करते हैं वो लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग का लफ्ज आया था ना, तो वो लाइफ लॉन्ग है, ठीक है,
वो विदाउट मॉनिटरिंग है, वो उनका जाविया बन गया, वो उनका पर्सपेक्टिव बन गया, वो उनका लेंस बन गया। सो बेसिकली हम दिमाग को इमोशंस के जरिए एक चश्मा दे रहे हैं जिसके अंदर से वो आप देखेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा, अच्छा अब मैं ना वर्ड स्विच कर रहा हूं और अब मैं अफेक्टिव डोमेन, विच एक्चुअली शायद आप इंग्लिश के सारे हैं तो आप लोगों को ये दिस वर्ड माइट मीन समथिंग टू यू, लेकिन इंजीनियरिंग में मैंने बहुत देखा है कि पूरा लेक्चर लेने के बाद भी वर्ड अफेक्टिव जो है ना, डज नॉट मीन एनीथिंग टू देम। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और मैं एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। आपको पता चल गया कि ये अफेक्टिव, और वो वर्ड जो है ना अरबी ओरिजिन का है और उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो कॉग्निटिव के लिए लफ्ज, क्योंकि वो इंटेलेक्ट है, तो कॉग्निटिव के लिए लफ्ज अरबी में अकलिया इस्तेमाल होता है। सो कॉग्निटिव डोमेन इज अकलिया, ठीक। और अफेक्टिव डोमेन के लिए नफ्सिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, नफ्स, नफ्सिया। तो अकलिया क्लियरली कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो भी चीज है, जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको मिलता है वो अकलिया है। और नफ्सिया आपके उर्दू अरबी में एक और लफ्ज है मयूल कहते हैं, यानी किस तरफ आप मायल हैं, आपका किस तरफ रुझान है। और वो रुझान इमोशंस की वजह से होता है, किस चीज का आपका दिल चाहता है और किस चीज का आपका दिल नहीं चाहता, ठीक है। तो अब फिर से हम सक्सेसफुल ग्रूमिंग, सक्सेसफुल पेरेंटिंग, सक्सेसफुल टीचिंग ये होगी कि जो चीज आप चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स और बच्चों में डालना, मैं फिर से कह रहा हूं, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है, इट कुड बी एनर्जी कंजर्विंग बिहेवियर, इट कुड बी काइंडनेस, इट कुड बी अ गिविंग नेचर, इट कुड बी सैक्रिफाइस, जो भी डालना चाहते हैं वो आप उनको उनका रुझान बना दें, उनको मायल कर दें उस तरफ, ठीक है। अगर आपने ये कर दिया तो दे आर ऑन ऑटो। और यहां पे मैं एक और बात कहता चलूं, जब वर्ड्स की कर ही रहे हैं, तो अफेक्टिव डोमेन के लिए अगर आपने सोचना है आज के बाद, तो आपने बहुत अच्छा लफ्ज उर्दू का तरबियत सोचना है। सो कॉग्निटिव डोमेन तालीम और अफेक्टिव डोमेन तरबियत। और हमारे जमाने में ये तालीम और तरबियत लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता था, आजकल जरा कम सुनने को मिलता है, शायद इसलिए कि उस वक्त एक मैगजीन आता था तालीम और तरबियत के नाम से, और इस वजह से। लेकिन ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो तरबियत, तो जब आप जब अफेक्टिव डोमेन में टैप कर रहे हैं तो आप बच्चे की असल में तरबियत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं एक मिसाल इसमें जो पहली है उस पर थोड़ा सा टाइम लूंगा ये समझाने के लिए कि हाउ दैट वर्क्स एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अकलिया और द कॉग्निटिव डोमेन, और फिर बाकी तीन जो है ना वो क्विकली। तो जिस पर मैं टाइम लूंगा वो ड्राइविंग की एग्जांपल है। थोड़ी देर के लिए आप इसको कंसिडर करें कि एक शख्स जो है, आप उसको ड्राइविंग सिखाना चाहते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाना। पहला सवाल, किसी शख्स को ड्राइविंग सिखाते वक्त जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं ड्राइविंग के, ठीक है, वो सिखाने में एट एन इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव लेवल, अकलिया, कितनी देर लगेगी आपके ख्याल में? यानी क्या बताना है आपने? आपने बताना है कि ये स्टीयरिंग है, इसको इस तरफ मोड़ते हैं तो गाड़ी इस तरफ जाती है, इस तरफ मोड़ते हैं इस तरफ जाती है। आप बताते हैं ये ब्रेक है, ये बीच वाला जो है वो, सॉरी देखिए मैं गलत हो गया, राइट साइड पे जो है आपका एक्सीलरेटर है, फिर ब्रेक है, फिर क्लच है। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आप कहते हैं इसमें क्लच वगैरह की जरूरत नहीं है, ये खुद से गियर बदलती है, ये गियर। ये सारी चीज कितना टाइम देना चाहेंगे आप इसको किसी को सिखाने के लिए? यू आर द टीचर नाउ, कितना? मुझे उम्मीद है कि इधर वाले थोड़ा सा ज्यादा शायद देना चाहें, इधर वाले कहें कि नहीं ये तो बस बच्चा पैदा होते ही सीख के आ जाता है। लेकिन स्टिल जी, 5 मिनट्स आपने कह दिया, चले घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे की क्लास, 6 मिनट्स, ठीक ठीक है, बहुत ही इन्होंने चैलेंज दे दिया है, लेकिन चल, लेकिन हमें यह पता है कि इस पे कोई खास ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसके बाद आप बिठा रहे हैं स्टूडेंट को गाड़ी पे, ये सारा बता दिया आपने, अब आप बिठा रहे हैं। अब और खास तौर पे थोड़ी देर के लिए मैनुअल गाड़ी सोचें, दैट मेक्स द एग्जांपल बिट मोर इंटरेस्टिंग। अब आप क्या समझते हैं कि कितने टाइम में ये फ्लुएंटली गाड़ी चलाना सीख जाएगा? Another 6 minutes to convert that cognitive information into, translate it into behavior and actions? नहीं, कितना टाइम लगेगा? सॉरी, सालों लग जाते हैं, कभी भी नहीं कर सकता। मुश्किल काम है ना, एग्जैक्टली मुश्किल काम है। और बहुत से फैक्टर्स इसमें भी डिपेंड करता है किस एज पे आप शुरू कर रहे हैं, लेटर एज में जरा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी बहुत से लोग
कभी भी इतने फ्लुएंट और कंफर्टेबल नहीं हो सकते जितने के कुछ और लोग होते हैं, ठीक है। और मर्द हजरात ये सोच रहे होंगे कि हम ज्यादा अच्छे ड्राइवर्स हैं और सारा कुछ, तो मैं अपनी ओपिनियन नहीं बताऊंगा क्योंकि खवातीन ज्यादा है, मैं नाराज नहीं करना चाहता। अब इसमें अकलिया और नफ्सिया का क्या काम है? जब आपने ये रूल्स किसी को बता दिए, अब वो गाड़ी पे बैठा है, तो वो द मोमेंट ही फेसेस अ सिचुएशन, अ रियलिटी, सो फॉर इंस्टेंस कोई सामने आ गया, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग थ्रू हिज माइंड? वो सोचता है कि ओह मेरे सामने कोई आ गया है, अब मुझे गाड़ी रोकनी है। फिर वो सोचता है गाड़ी रोकने के लिए मुझे ब्रेक दबानी है। फिर वो सोचता है ये ब्रेक कौन सी वाली थी, ये राइट वाली थी, कभी कभी राइट वाली दबा भी देता है, बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं। फिर ये बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट थी, कभी कभी वो भी दब जाती है, ठीक है, और गाड़ी और तेज हो जाती है इसलिए कि आप उसको न्यूट्रल कर देते हैं और वो और तेज, फिर एक्सीलेटर से तो क्लियरली होती है। फिर उसको याद आता है नहीं ये ब्रेक बीच वाली है। फिर वो सोचते हैं इसको मैं कितना दबाऊं। तो आपने देखा होगा जब नया ड्राइवर बैठता है, कोई चीज बहुत भी दूर है, आप कहते हैं ब्रेक लगाओ, एकदम यूं आपका सर ऑलमोस्ट जाके स्क्रीन के साथ लगने लगता है। ये सब होता है ना, वाई? बिकॉज दैट पर्सन is continuously referring to his informational database जहां पे सारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं, और इस प्रोसेस में टाइम भी लगता है और गलती भी हो सकती है। इसीलिए गलतियां भी होती हैं, टाइम भी लगता है, और ये बड़ा डिफिकल्ट सा, और वो बंदा भी बड़ा डिस्कंफर्ट फील करता है इस प्रोसेस में। आफ्टर अबाउट ए ईयर ऑफ ड्राइविंग ज्यादातर लोग यही काम कंप्लीटली सोचे समझे बगैर करते हैं, बल्कि उन्होंने एक हाथ में मोबाइल फोन, दूसरे हाथ में बर्गर, तीसरे हाथ और कानों से फिर साथ में गाने शाने भी पीछे बैकग्राउंड में लगे होते हैं, शीशा नीचे होता है, बाहर भी किसी के साथ इशारे कर रहे होते हैं, और परफेक्ट जो है ना ब्रेक लगती है परफेक्टली तकरीबन ये सब। आई डोंट रिकमेंड दैट काइंड ऑफ ड्राइविंग, लेकिन इस तरीके से होता है। व्हाई? व्हाट हैपेंड? आपका जो ये प्रोसेस था कि आप डेटाबेस को रेफर कर रहे हैं, ये बाईपास हो गया, एंड इट बिकेम, इंग्लिश में हम कहते हैं सेकंड नेचर। तो ये सेकंड नेचर बन गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस फॉर एनीथिंग जो कि आपके अफेक्टिव डोमेन के अंदर घुस जाए। सो फॉर इंस्टेंस, अगेन मैं अपनी मिसाल की तरफ आऊं, आप किसी के सामने पॉर्क रखते हैं, क्या वो बंदा ये सोचता है कि यार ये हलाल है या हराम है? अगर हराम है तो फिर तो मुझे नहीं खाना चाहिए, ये सारा प्रोसेस। लेकिन आप आज किसी को कहें लेट्स से इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो कहेगा नहीं मगर इंटरेस्ट तो हराम नहीं है, वो तो वो वाली चीज असल में जब ऐसे हो जाए, जब ये हो, मतलब इट विल, ये एक अलग डिस्कशन है कि चलें ठीक है, कुछ लोग वाकई इसके ऊपर इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज हैं या डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें आपको एक तरफ सोच समझ के करनी पड़ रही हैं, अपने आप को कन्विंस करना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है कि क्या हुक्म है, और उसके अंदर गलती भी आती है, डिले भी आता है, और आपको मुश्किल भी होती है, और कुछ चीजें जो है ना वो इंटरनलाइज हो गई। तो अफेक्टिव डोमेन में नफ्सिया बन जाना, इसको कहते हैं कि नाउ इट इज ऑटो, यू डोंट हैव डिफिकल्टी इन डूइंग इट, you don't have to refer to that database again and again, you don't need to fetch the hukam or the information, ये सब आपको नहीं करना। तो अगर आपके सामने नल का खुला है, आप कहीं से गुजर रहे हैं, नल का खुला है, ये आपको डेफिनेटली तकलीफ देगा, आपको तकलीफ देगा। यू कांट जस्ट पास बाय कि ये नलका खुला था, आप वहां जाएंगे, उसको बंद करेंगे, तो देखेंगे, हो सकता है किसी के ऊपर शोर भी डालें, ये क्या हो रहा है, ये क्यों इतना पानी बह रहा है, सब कुछ। लेकिन ये भी आप मानेंगे कि ज्यादातर लोग हमारी सोसाइटी के अंदर दे डोंट केयर, बह रहा होगा और पानी एंड दे डोंट केयर। किसी का भी ना, मतलब पार्क में चले जाएं, कोई कोई लीकेज है, नोबडी वुड इवन इन्फॉर्म। आप कहीं से गुजरते हैं, आपको गैस की बू आ रही है, खतरनाक बात है ना बहुत। गैस के अंदर असल में तो ये जो मीथेन कहते हैं इसको, तो ये जो गैस है ये तो ओडरलेस है ना, तो इसके अंदर ये बू डाली ही इसीलिए गई है कि जब किसी को ये बू आए तो वो अलार्म रेस करे। लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता, अपने घर के मीटर से आ रही हो तो हमें नहीं फर्क पड़ता, जहन में नहीं आता कि जाया हो रही है, जहन में नहीं आता कि कुछ खतरा है, कुछ हो सकता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। और अगर ऐसा, और वंस इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड, पार्ट ऑफ योर बिलीफ, पार्ट ऑफ योर जो भी आप उसको कहना चाहें, तो फिर यू कांट जस्ट स्टॉप। अब तीनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर आप रिपीटेडली
किसी को फजर के लिए उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, तो बस इट बिकम्स, मतलब ये है कि एट एज 15 पे ये परफेक्ट आपने कर दिया है, इसके बाद शायद आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, इसी तरीके से स्मोकिंग बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। स्मोकर्स जो है ना, जो इसको इतने यूज टू हो जाते हैं, स्मोकिंग लोग क्यों करते हैं, मतलब कंटिन्यू क्यों करते हैं? शुरू तो करते हैं ना, कहते हैं कम फॉर द स्टाइल एंड स्टे फॉर द टेस्ट। मैं जब यंग था तो मैं सोचता था कि ये कितना बड़ा ट्रैप है जो कि इनके इसमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यानी कह रहे हैं कि आ रहे हो तुम ये शशके वशके के लिए, लेकिन फिर फंस जाओगे तुम इसमें टेस्ट यानी उस एडिक्शन की वजह से। ठीक है, स्टाइल तो बस फिर खत्म हो गया। तो वो जो एडिक्शन है वो किस चीज की एडिक्शन है? निकोटीन की है मेरे ख्याल में। तो ये जो निकोटीन की एडिक्शन है, इसको खत्म करने के लिए रिसर्चर्स ने निकोटीन पैचेस बना दिए। ठीक है, तो आप वो पैच लगा लेते हैं और वो पैच हल्के हल्के मिकदार में ओवर द डेज, कम छोटा पैच लगता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ताकि आप वीन ऑफ हो जाए। लेकिन मजे की बात यह है कि नोट ये किया रिसर्चर्स ने कि हम वो पैच लगा देते हैं और अब उसकी जरूरत निकोटीन की पूरी हो रही है। व्हाट डज दैट पर्सन मिस? ये प्रोसेस, ये प्रोसेस वो फिर भी मिस करता है। इसीलिए जो रिजल्ट्स हैं वो ई सिग के वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ये प्रोसेस भी स्टिल हो रहा है और निकोटीन भी मिल रही है, और वो टार शार से उन्होंने थोड़ी जान छुड़ा दी है, तो कुछ मसाइल उन्होंने हल कर दिया है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग ई सिगरेट्स, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपका जो ये जो आदत है एक चीज को उठाना और सूटा लगाना और ये सारा कुछ करना, जस्ट ये मोशन आपके अंदर इतना ज्यादा आपका आपका हिस्सा बन चुका है कि उससे जान छुड़ाना, इवन दो आपका नशा पूरा हो रहा है, लेकिन आपके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हैबिट्स अगेन। और इसी तरीके से ईटिंग डिसऑर्डर्स, तो ये तो आजकल एक ऐसी चीज है कि ये तो नॉर्म है ना, मतलब अगर कोई हेल्दी खाना खाता है तो वो एबनॉर्मल है, और ये हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हैं, जो कि जिनको सारे इस किस्म के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जंक फूड रिलेटेड और सब। और हम जानते हैं कि उसमें भी दे आर हैबिचुअल, यानी अच्छा खाना खाने के लिए सोचना पड़ता है, अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है। और ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये तो बस एक बिल्कुल नॉर्म बन चुकी है। इससे अपने आप को हटाना जो है बहुत मुश्किल है। वाई? क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड है। हम अपने बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेट करने कहाँ लेके जाते हैं? अच्छे खाने पे या फास्ट फूड पे? हम फास्ट फूड पे लेके जाते हैं ना, तो उसने सारे पॉजिटिव इमोशंस कनेक्ट किए हुए हैं मैकडोनल्ड्स के साथ, केएफसी के साथ, ये सारे उसने कनेक्ट किए हुए हैं। खाली अगर हम ये अक्ल कर दें ना, अक्ल की काम कर दें कि जी जब वो छोटे ही हों तो बर्थडे पे या रिवॉर्ड करने के लिए कहीं ट्रेडिशनल किसी चीज पे ले जाएं जिसमें खाना भी ट्रेडिशनल हो, तो जायका तो बन ही जाएगा, छोटे बच्चों को तो कोई मसला नहीं होता, वो हमारे लिए असल में मसला है ना। और फिर वो उस चीज को पॉजिटिवली देखने लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी नफ्सिया की एक्सप्लेनेशन। और मजे की बात ये है कि ऑफ कोर्स हमारा जो खालिक है उसको ये बात समझ में आती है, और खालिक ने जगह जगह के ऊपर दिल के हवाले से, ठीक है, बात की। इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, आवर लॉर्ड, लेट नॉट आवर हार्ट्स डेविएट आफ्टर यू हैव गाइडेड अस एंड ग्रांट अस फ्रॉम योरसेल्फ मर्सी। तो हार्ट्स की, दिलों की, कुलूब की बात हो रही है, कल्ब की बात हो रही है, क्योंकि अगेन इट्स द इमोशंस। इंटेलेक्चुअली आपको पता है कि चीज क्या गलत है और क्या चीज ठीक है, लेकिन मसला ये है कि दिल चाहता है वो चीज करने को, और जब तक दिल चाहता रहेगा, और हमेशा ही चाहता रहेगा किसी न किसी चीज को, लेकिन असल काम जो है वो, या बहुत बड़ा काम जो है, हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए उनके दिलों के ऊपर करने की जरूरत है, विच इज इमोशंस, अफेक्टिव डोमेन, नफ्सिया। ये एक वाकया है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सीरत से एक बहुत ही खूबसूरत वाकया है। और सीरत में ऐसे बहुत सारे वाकये हैं जहाँ पे हमें पता लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली अंडरस्टूड द पावर ऑफ इमोशंस। वाकया कुछ इस तरह है कि एक गजवा होता है, एक जंग होती है, और उसमें मुसलमान जीत जाते हैं, और उसके बाद जो है ना, माल गनीमत जो उनको मिलता है उसको तकसीम किया जाता है। और उसकी तकसीम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम कहें कि जी एक जुडिशियस तरीका है कि जी सबको बराबर और जिसका जो हिस्सा, इस तरह नहीं तकसीम करते, बल्कि जो नो मुस्लिम होते हैं, जो नए मुसलमान हुए होते हैं, उनको एकोमोडेट करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा दे देते हैं उनको, और जो बाकी होते हैं उनके लिए बहुत थोड़ा सा बच जाता है। तो उन बाकियों के अंदर अंसार भी होते हैं, और अंसार जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के दीन को सपोर्ट किया, नसर दी, वो थोड़े नाराज हो जाते हैं, और वो नाराज होके रसूल वसल्लम के पास आते हैं और शिकायत लाते हैं कि जी ये आपने क्यों इस तरह किया कि उनको इतने बहुत बहुत
कैमल्स मिल गए और उनको इतने बहुत बहुत घोड़े मिल गए और उनको इतने बहुत बहुत शीप मिल गए, और हमें जो है ना बिल्कुल नहीं या कुछ मिला या बहुत कम मिला। ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने किया, वो रसूल के पास आए। अब मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट कुड बी एन इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या रिस्पॉन्स हो सकता था इंटेलेक्चुअल इस एतराज के ऊपर? मिसाल के तौर पे इस तरह सोचें, हमारी अथॉरिटी को हमारे किसी स्टूडेंट ने या हमारे किसी बच्चे ने चैलेंज किया, तो जब वो चैलेंज होती है अथॉरिटी, तो हमारा नेचुरल पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भाई हम क्योंकि बड़े हैं तो हमें ज्यादा पता है। ये बिल्कुल एक हो गया रिस्पॉन्स। और तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते, बिल्कुल ठीक, तुम्हें वो नहीं पता जो मुझे पता है, ठीक, गुड। और लेकिन अभी भी वो रिस्पॉन्स नहीं आया जो कि सारी जिंदगी हम सुनते रहे। हम कहते हैं मैं बाप हूं, ठीक है ना, तुम बच्चे हो, मैं टीचर हूं, ये असूल है, ये रूल है, ये नया रूल है, ये फलाना। हम ये करते हैं ना इंटेलेक्चुअल तरीके से, आप कहते हैं। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पोजीशन में थे कि वो ऐसा कुछ करते थे या नहीं थे? और वो कह सकते थे कि यार मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड, मैं जो भी करता हूं उनके हुक्म से करता हूं, हु आर यू टू चैलेंज माय और अल्लाह's डिसीजन? और बस बात खत्म हो जानी थी। बट ही डिडंट डू दैट। इस तरफ गए ही नहीं, बिल्कुल इस डिस्कशन में ही नहीं गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी सारी बात सुनने के बाद उनको बस एक बात कही। उन्होंने कहा कि वो जो थे ना कुरैश, जिनको ये ज्यादा चीजें मिली, वो अपने ज्यादा घोड़ों के साथ और ज्यादा दुम्बों के साथ घर चले गए, अपने घर चले गए। और तुम किसके साथ घर जाओगे? तुम्हारे साथ कौन जाएगा, दुम्बे या मैं? तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। एंड दे स्टार्टेड क्राइंग। और वो इतना रोए कि उनकी दाढ़ियों में से पानी गिर रहा था कि मतलब हमने ये कैसी बात कर दी है, मतलब व्हाट काइंड, हमने कैसी डिमांड। और होता है ना कभी कभी, ये माएं बहुत अच्छी होती हैं बच्चों को कभी कभी इस तरह इमोशनल करने में, ठीक है, और उनसे कोई बात मनवाने में। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली माओं के पास भी इतना टाइम नहीं रहा कि वो बच्चों के साथ इस लेवल पे कनेक्ट करें, तो इसलिए आजकल माएं भी बापों की तरह यही कहती हैं कि मैं मां हूं और मैंने कहा और इसलिए तुमने ऐसे करना। तो ये एक स्टोरी सीरा से भी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि हमारे यहां पे डिस्कशन कॉग्निटिव वर्सेस अफेक्टिव की नहीं हो रही। हम उनको मुकाबला नहीं कराना चाह रहे, ठीक है, ये कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन से मैंने अपने आप को पहले ही वो कर लिया कि नहीं तो सर कौन सा ज्यादा जरूरी है, तो नहीं फिर इसकी इंपॉर्टेंट नहीं, ऑफ कोर्स दोनों की इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंस समझना ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये दोनों, यानी दोनों, एक निग्लेक्टेड है ना बहुत सोसाइटी के अंदर इस वक्त, कल्चरली बहुत निग्लेक्टेड है, तो उसको हमने दोबारा से रिवाइव करना है, नॉट एट द कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, उसके एक्सपेंस पे नहीं। तो ये जो जॉकी और हॉर्स की एग्जांपल दी जाती है, इससे बहुत अच्छा समझ में आता है। एक घोड़ा है, घोड़े की रेस है, ऊपर जॉकी भी बैठा हुआ है मुख्तलिफ घोड़ों के ऊपर। तो आपसे सवाल ये है कि खाली जॉकी अगर भागे उस रेस में तो वो जीत सकता है? नहीं जीत सकता ना। कभी घोड़ा तो, अगर इंसान घोड़े का रेस में क्या मुकाबला करेगा? खाली घोड़ा अगर भागे उस रेस में तो वो बाकी घोड़े जिनके ऊपर जॉकी बैठे उनसे जीत सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उल्टा भागना शुरू कर दे, कोई उसको थोड़ा सा चारा दिखाए, इमोशंस है ना, कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि आपने, जॉकी नीड्स टू बी सिटिंग ऑन द हॉर्स। हॉर्स क्या है? फायर पावर। हॉर्स क्या है? इमोशंस, इनमें बड़ी ताकत होती है। और जॉकी क्या है? इंटेलेक्ट, द राइट आइडियाज। तो राइट आइडियाज कपल्ड विद द राइट इमोशंस जीतते हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। किसी एक में भी अगर मिसिंग हो या कमी हो तो फिर अंदेशा है मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए बार बार ये बात समझाने की कोशिश की, और कभी कभी इनका मुकाबला भी कराया समझाने के लिए कि क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। तो अक्ल का ब्लाइंड स्पॉट यहां पे वो बता रहे हैं, कहते हैं अक्ल अय्यार है, 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम। तो अक्ल जो है ना, वो हमें, जब हमारे इमोशंस किसी चीज की तरफ होते हैं तो फिर अक्ल आके जस्टिफिकेशंस बताती है। नहीं मगर ये ऐसे नहीं है, नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, ये सारे बहाने बताती है।
ये पुराने जमाने की बात थी, ये तब हो सकता था, ये अब नहीं हो सकता, अब ऐसे हो गया। ये यहां पे अकल जो है ना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है थ्रू आर्ग्यूमेंटेशन, थ्रू बहस मुबाहिसा। तो अगेन ये काम है फिर के हमें पता हो, अपने अंदर भी हमें पता हो कि असल में क्या चल रहा है। तो ये वो खुद एहतसाबी की इंपॉर्टेंस है कि हम अपना एहतसाब करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें। और अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले अपनी नीयतों की होती है, फिर अपनी ख्वाहिशात की होती है, और फिर अपने एक्शंस की होती है। तो एक्शंस वाली तो अक्सर लोग फिर भी कर लेते हैं कि यार मैंने ये काम किया, पता नहीं मैंने क्यों किया, गलत काम किया, लेकिन मेरी ख्वाहिश ही क्यों थी ऐसी, और मेरी नीयत क्या थी ये काम करने के अंदर, व्हाट वाज आई एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव, इस पे हमें गौर करने की जरूरत है। अब क्विक थोड़ी सी एग्जांपल्स और, एंड आई थिंक देन वी आर कमिंग टू एन एंड इंशाल्लाह। तो एग्जांपल्स में क्या है जी, सवाल ये है कि जो लोग भी अपने कॉग्निटिव डोमेन के मुताबिक बिहेव नहीं कर रहे, यानी जो वो समझते हैं कि गलत है उसको कर रहे हैं, जो वो समझते हैं कि ठीक है वो नहीं कर रहे, इस ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि मिसगाइडेड है, ठीक है, यानी गाइडेंस होते हुए भी वो उलट कर रहे हैं। तो ये जो मिसगाइडेंस है, ये किस लेवल पे है, ये क्यों है? क्या अक्सर लोगों के साथ मसला ये है कि उनको पता नहीं है कि ठीक क्या है और गलत क्या है? ऐसा नहीं है ना। आपको शायद पाकिस्तान में कोई ना मिले जिसको मोटे मोटे फराइज और मोटे मोटे मुहर्रमात का ना पता हो। आपको शायद पाकिस्तान में कोई ना मिले जिसको ये ना पता हो कि एनर्जी को कंजर्व करना है, चीजों को जाया नहीं करना है, एक बेहतर सोसाइटी बनती है जब ये सबको पता है। तो इसका मतलब ये है कि द फेलियर मोस्टली इज नॉट एट द कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव लेवल का इशू नहीं है, हालांकि हमने फिर भी जोर ज्यादा कॉग्निटिव को दिया है, और ये करना है, और ऐसे करना है, ये बताना है, वो करना है, बच्चों को पहली जल्दी उम्र में बता देना है, ठीक है, बहुत सारी इस किस्म की हमारी इंटरवेंशन। अगर आप देखें, अब इसके लिए आप कंसिडर करें चंद बड़े मिसगाइडेड लोगों को, चंद बड़े टॉप के मिसगाइडेड पर्सनालिटी। अगर आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी मिसगाइडेड पर्सनालिटी कौन है, तो मोस्ट लाइकली सारे इब्लीस का ही नाम लेंगे। तो अब इब्लीस का इशू कॉग्निटिव था या अफेक्टिव था? क्लियरली अफेक्टिव था ना। हम सब जानते हैं एरोगेंस, एरोगेंस जो है वो एक इमोशन, ठीक है। इसी तरीके से अबू जहल, उनका क्या इशू था? पर्सनल एनमिटी थी, एनमिटी सख्त। इसी तरीके से वलीद बिन मुगीरा, उनका इशू, ही वाज अनग्रेटफुल टुवर्ड्स गॉड। उनका गिला ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों पैगंबर बना दिया, ऑर्फन भी है, गरीब भी है, सब कुछ, मैं इतना कमाल का शायर, मैं इतनी कमाल की पर्सनैलिटी, मैं ऐसे, ये कैसे, ये कैसा किया? तो वो जानता था, वो कहता था कि मुझे पता है कि ये जो मोहम्मद पढ़ के सुनाता है ये इसकी अपनी तख्लीक नहीं है, ये अल्लाह इस पे नाज़िल करता है। लेकिन ही वाज सो अनग्रेटफुल, व्हिच इज एन इमोशनल थिंग, उसने कहा कि मैं मानूंगा नहीं, ऐसे खुदा को मैं नहीं मानूंगा जिसने ये मेरे साथ नाइंसाफी की है कि मुझे वो नहीं किया। तो एन इमोशनल थिंग। और इसी तरीके से अबू लहब जो है, उसकी तो फैमिली फाइट थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये चीज अगेन सामने आ रही है कि जो मिसगाइडेंस है उसमें बड़ा रोल इंटेलेक्चुअल है ही नहीं। तो इसीलिए आप उसको, यू कांट फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन, तो इसको फिक्स करने से नहीं होगा। तो मजीद इंटेलेक्ट से बम्बार्ड करना इज नॉट द सॉल्यूशन। इसी तरीके से गाइडेंस, जिन लोगों ने, फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे एक लिस्ट कंपाइल की है पहले पहले मुसलमानों की, तो पहली खातून, पहला गुलाम, पहला मर्द, पहला बच्चा। आपने भी ये वाकयात सुने होंगे और आपको मैं इनवाइट करता हूं कि आप जाके उनको दोबारा भी देखें। इनमें कहां आपको इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नजर आती है बहुत लंबी सारी, के ये लोग इसलिए मुसलमान हुए कि ये इंटेलेक्चुअली डिस्कशन के नतीजे में कन्विंस हुए, आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। रादर ये सारे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड थे, मोहब्बत करते थे, इम्प्रेस थे, करीब थे, इसलिए जब उन्होंने कहा उन्होंने मान ली। इससे हमें क्या पता लगता है? अगर हम अपने स्टूडेंट्स या बच्चों के बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो पहली कंडीशन है कि हमारा उनके साथ बॉन्ड होना चाहिए, इमोशनल लेवल की, कुछ बॉन्ड, कुछ स्टूडेंट्स के साथ रिस्पेक्ट का बॉन्ड, कि हम उनको टॉन्ट ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें, ओ तुम तो हो ही ना लायक, तुम तो बाहर निकल जाओ, तुम तो पीछे जाके बैठ जाओ, तुम आते ही क्यों हो, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट।
अगर हम ये कर रहे हैं और फिर हम समझ रहे हैं कि हम उसको चेंज कर सकते हैं और उसको कोई बेहतर बिहेवियर सिखा सकते हैं, तो ये ना, ये पहली चीज। और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, वो हमसे मोहब्बत कब करेगा, वो हमें लुकअप कब करेगा, जब हमारे अंदर वो खसूसियात होंगी। अगर वो खसूसियात हमारे अंदर नहीं है तो फिर ये नहीं होने वाला। और इससे रिलेटेड मैं एक और इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ, एंड देन वी गो टुवर्ड्स द एंड इंशाल्लाह, एंड इट्स वेरी पावरफुल स्टोरी एक्चुअली। छोटी सी ना मेड अप सी स्टोरी सिखाने के लिए। और वो ये है कि थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करें कि आपको अपने घर के अंदर एक कमरे के ऊपर यह शक हो जाता है कि इसमें कोई जिन, भूत, आसेब या कुछ है। यू डोंट इवन बिलीव इन दैट, ठीक है, लेकिन आपको शक हो गया, जहन में आ गया कि जी इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इस कमरे के अंदर कुछ है इसमें। और ये शक है, यकीन नहीं है, गुमान है, और आप किसी को बताते भी नहीं। तो आप पेरेंट्स को भी नहीं बताते, बेगम को भी नहीं बताते, हस्बैंड को और बच्चों को भी नहीं बताते। लेकिन नेचुरली क्योंकि आपको यह शक है, तो आपके बिहेवियर में कुछ थोड़ा सा तो ये ट्रांसलेट होगा। तो बच्चा जो है ना, रात को 11 बजे उठ के जा रहा है कमरे की तरफ, आप क्या कहेंगे? बेटा मत जाओ इस टाइम पे, इस कमरे में, इस टाइम पे क्या कर रहे हो उधर, मैं ला के देता हूं, बैठ जाओ। आप जाके उसको जो भी चीज चाहिए ला। बेगम जो है वो वहां पे जाती है, लोड शेडिंग है, कमरे में अंधेरा है, वो जा रही है, आप कहते अब क्या उधर क्या कर रही हो, बिजली गई हुई है, छोड़ो, वहां पे यूपीएस भी नहीं है, लाइट नहीं लगी हुई, ना अभी मत जाओ, बाद में देख लेना, कोई जरूरत। बेगम को बात लोग नहीं रोकेंगे, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो वो तब नहीं रोकेंगे अगर यकीन हो कि वहां कुछ पकड़ लेगा। ये तो अभी सिर्फ गुमान है। तो इसी तरीके से वालदैन है, होगा क्या, क्या आपके घर वालों को पता चल जाएगा कुछ अरसे में कि कुछ गड़बड़ है? पता चल जाएगा, सबको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा, जस्ट आपके बिहेवियर से। एंड दे माइट बिकम कॉन्शियस, दे माइट बिकम कॉशियस, और उनके बिहेवियर के अंदर भी एक तो उन्होंने जांच लिया और उनके बिहेवियर के अंदर चेंज आ गया। इस स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा या बड़े लेसन्स भी हैं, और इस स्टोरी के अंदर हमारे मुंह के ऊपर बहुत बड़ा धप्पड़ भी है। कैसे? एक तरफ हम यकीन की कैफियत में अल्लाह सुब्हानहू तआला के हवाले से और उसके अहकाम के हवाले से, और दिन रात उनको कह भी रहे हैं ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करो, ऐसे करो, और वो नहीं सुनते हमारी। हम कहते हैं जी हम तो हेल्पलेस हो गए, तो हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं मानता। और दूसरी तरफ हम बहुत ही हल्के से गुमान की कैफियत में है, और हम चाहते भी नहीं थे कि वो हमें फॉलो करें, हम ये भी नहीं चाहते थे कि उनको पता चले, और वो कर रहे हैं। है ना धपड़? और लेसन क्या है? लेसन ये है कि ये जो बिलीफ्स हैं, ये जबान से नहीं ट्रेवल करते, ये बिहेवियर से ट्रेवल करते हैं। यू विल हैव टू बी द रोल मॉडल। आप अगर खुद अल्लाह से डरने लग जाएं तो बच्चे भी डरेंगे। अगर आप डरते नहीं है खुद और उनको डराते हैं दिन रात, तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं डरना, बल्कि उन्होंने सोचना है कि ये माँ बाप हमारे या टीचर्स हमारे पागल हो गए हैं। खुद तो डरते नहीं है, हमें डराते रहते हैं, हम इतने बेवकूफ हैं कि हम डरेंगे। जहां पे आप हल्का सा भी डर शो कर रहे थे अपने बिहेवियर से, वहां उन्होंने पकड़ लिया, आपके बताए बगैर पकड़ लिया, और यकीन तो दूर की बात, गुमान के लेवल के ऊपर ही पकड़ लिया। समझ आ गई ये चीज? तो अच्छा जी, तो अब हम जब बच्चे रेज करते हैं क्लासरूम के अंदर, खास तौर पे ये ट्रेनिंग मैं स्कूल्स में बहुत देता हूं, तो क्लासरूम के अंदर भी, और हम अपने बच्चे, आपको पता है क्या तीन मोस्ट हर्ड सेंटेंसेस बाय चिल्ड्रन क्या हैं? इस पर कुछ रिसर्च हुई, आपके ख्याल में क्या होंगे? बच्चे तीन जुमले कौन से सबसे ज्यादा सुनते हैं? पहला कौन सा सबसे ज्यादा सुनते हैं, क्लास में या घर में? सोचें जी, 5 से 10 साल का बच्चा है, बता दें, शर्माने की क्या जरूरत है, बोलते हैं ना हम, चुप हो जाओ, ये पहला मोस्ट स्पोकन है। दूसरा, बैठ जाओ, और तीसरा, चले जाओ या दफा हो जाओ। ठीक है, ये तीन तीन जुमले हैं मेन, जो कि वो कहते हैं हमने सबसे ज्यादा सुने, बच्चे ये कह रहे हैं। तो ये तो लेवल है हमारे इमोशनल कनेक्ट का उनके साथ, अगर आप सोचें। और जब से मोबाइल फोन आया है, तब से तो अपने बच्चों के साथ या किसी के साथ भी कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कनेक्ट करने का सिर्फ हल यही है कि कोई बहुत दूर बैठा हो और उसके पास भी मोबाइल फोन हो, तो या तो अपने बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ा दें, दूसरे कमरे भेज दें, फिर शायद अगर उसकी चैट आए, हमें खुशी हो, कुछ हार्मोन्स रिलीज हो और हम उसको जवाब दे दें और इमोजीज भी भेज दें। और लेकिन अगर वो साथ बैठा हुआ है तो वो कह रहा है अब्बा अब्बा, और आप हाँ ठीक है,
तो मैं अक्सर बताता हूँ कि जो वर्ड है ना तवज्जा, ये वर्ड तवज्जा निकला है वजूह से, अरबी का वर्ड वजूह, और वजूह चेहरे को कहते हैं। तो बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप किसी को तवज्जा देना चाहते हैं तो आपने मिनिमम अपना चेहरा उसकी तरफ करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी की तरफ चेहरा नहीं करते थे सिर्फ, सो ही वुड नॉट डू लाइक दिस, वो पूरे के पूरे टर्न, ये अंडरस्टूड कि अगर आपने किसी को इज्जत देनी है, तवज्जा देनी है, तो आपने पूरे का पूरा। हम आजकल क्या करते हैं, हम मुश्किल से कोशिश करते हैं कि ये एक आंख दूसरी से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ उधर देख ले थोड़ी देर के लिए, और ये दूसरी वाली जो है ना वो स्टिल मरकूज रहे उस इंतहाई इंपॉर्टेंट चैट के ऊपर, या उस इंतहाई इंपॉर्टेंट रील या शॉर्ट के ऊपर जो हम इस वक्त फेसबुक पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो ये इशू है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा एक और बात मैं करना चाहूंगा, और वो ये कि देखें हमारे जो स्कूल्स हैं ना, वो अगर आप बाहर के मुल्क के स्कूल्स के साथ कंपेयर करें तो हमारे स्कूल्स में हर किस्म का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। एंड इट एक्चुअली, क्योंकि मैं बाहर स्कूल गया था, फिर मेरे बच्चे भी बाहर पैदा हुए, वो भी वहाँ स्कूल गए, तो मैं जब पाकिस्तान आया, पहले खुद जब आया एज ए स्कूल गोइंग किड और 12 साल की उम्र में, और फिर जब मेरे बच्चे आए तो मैं बहुत ही तंग होता हूँ बहुत सी चीज़ों में स्कूल्स की। मैं तो बड़ा सख्त एंटी यूनिफॉर्म भी हूँ, मुझे यूनिफॉर्म भी नहीं पसंद, और मुझे ये सारे जो सुबह खड़े होकर सबके सामने लाइन से तलाशियां लेते हैं, नाखन चेक करते हैं, और ये सारा कुछ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अजीब वो, यानी दिस इज नॉट द वे टू इनकलकेट सर्टेन बिहेवियर्स मेरे ख्याल में। लेकिन हम हैं हमारे अंदर, लेकिन सवाल ये है कि क्या एज ए नेशन ये रिफ्लेक्ट होता है? मतलब अगर हमारे स्कूल इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, सिट स्ट्रेट, ऐसे बैठना है, इधर नहीं देखना उधर नहीं, ये सारा कुछ हम करा रहे हैं, डज इट रिफ्लेक्ट इन सोसाइटी आफ्टर? इट डजंट, अनफॉर्चुनेटली। क्यों? फिर वही बात, आपने किस लेवल पे किया? आपने ये सब कुछ किया है इमोशंस को रोंदते हुए, यू डिड इट एट द एक्सपेंस ऑफ इमोशंस। ज्यादातर बच्चे स्कूल से, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ मेरे जैसे रिबेलियस बच्चे स्कूल के फ्रेमवर्क से निकलते साथ सबसे पहले तो बाल लंबे करते हैं। क्यों? यार ये अब पाबंदी नहीं है, अब हमने ये बाल लंबे करने, ठीक है, कुछ हो सकता है नाखन भी लंबे कर देते हो इस गुस्से में, लेकिन दैट्स अगेन द पॉइंट के यू कैन नॉट अचीव change in the other person's behavior by discrediting their emotional state or by offending or not taking into account their emotions. ये चीज़ें जो हैं बड़े ही प्यार, बड़े ही कनेक्शन से होती हैं, और फिर ऐसे होती हैं कि लाइफ लॉन्ग जारी रहती हैं, अदरवाइज ये रिबेलियन में रिजल्ट करती हैं। क्विकली, अब हमने जो बात की अफेक्टिव डोमेन की या नफ्सिया की, इसको डेवलप करना आसान नहीं। ये सारी डिस्कशन से समझ में आई होगी, लेकिन इसके लिए बहुत सी चीज़ें, इसके लिए आपको रोल मॉडल बनना है, इसके लिए आपका कनेक्शन, मैंने शुरू में बताया था, बहुत ज़रूरी है। आप देखें एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहुत पावरफुल हदीस है, लेकिन हम उस हदीस को सुन के करते कुछ और है। वो हदीस ये है कि एक शख्स अपने बेहतरीन दोस्त, खलीली की बात हुई है तो बेहतरीन दोस्त के दीन पर है, ठीक है, आप अपने दोस्त के दीन पर है। अब बच्चों के लिए हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार इसके दोस्त कौन होने चाहिए, इस वाले को नहीं रखो, ये ठीक है, हम ये काम शुरू कर देते हैं। करना क्या चाहिए था असल में? उसका दोस्त बनना चाहिए था। एग्जैक्ट, हम उसके दोस्त बने, हम वो दोस्त बने उसके लिए जिसके दीन पे हम चाहते हैं कि वो, हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा हमारे दीन पे हो, ठीक है, तो हम उसका वो वाला दोस्त बने, लेकिन इसके लिए बहुत एफर्ट है अपने आप को चेंज करना। और ये बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को अपना पेरेंट या टीचर अच्छा लगता हो और वो उसकी तरह बनने की कोशिश ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और अगर आप किसी की तरह, हम आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बनने की कोशिश नहीं करते, उसकी वजह क्या है? हम उनके बारे में इनफ जानते ही नहीं, ना हमने सीरा पढ़ी है, ना हमने सीरा सुनी है, ना हमारी डिस्कशंस का ये हिस्सा है। तो अगर ये होगा तो फिर ऑफ कोर्स हम तो आज जिन कैरेक्टर्स को जानते हैं, पता नहीं उनके अंदर ईमान की रमक भी है कि नहीं, और अल्लाह ना करे कि हम उनकी तरह बन जाए। हम तो उनके किसी एक पहलू को ना, वो बॉल को कितना अच्छा टैकल करता है, इस पहलू के ऊपर हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन बाकी चीजों में तो हम खुदा ना करे कि उसकी तरह बन जाए। तो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है, जो मैंने बताया, स्कूलिंग, ज़ाहिर है नफ्सिया जो है स्कूल में शेप होती है, और स्कूलिंग से रिलेटेड भी कुछ मेरे जहन में चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में अगर हुआ तो
और फिर कंपनी, जो दोस्त की बात हुई, तो कंपनी वी हैव टू वॉच आवर कंपनी, ऑफ कोर्स हमें अपने आप पे काम करना है, फिर उसके बाद हमें रिजल्ट्स नजर आएंगे। ये हो गई चीज। अब हम क्विकली एक रीकैप सा देते हुए ना, मैंने आपको बताया था कि ये 5 लेवल्स हैं, तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और इंटरनलाइजिंग। तो अब ये थोड़ी सी एकेडमिक डिस्कशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो रिसीविंग क्या है? पहला लेवल अफेक्टिव डोमेन का ये है, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम, के आप जिसको पढ़ा रहे हैं, जिसको सुना रहे हैं, वो सुन रहा है, रिसीव कर रहा है। अगर वो रिसीव नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे सोया हुआ है, मिसाल के तौर पे किसी और काम में मसरूफ है, मिसाल के तौर पे सर नीचे करके बैठा है, बात व्हाटएवर, तो फिर काम नहीं हो रहा। तो जाहिर है पहली पहली चीज रिसीविंग है, ठीक है। तो दे नीड टू बी अवेयर, दे नीड टू अटेंड द सेशन, दे नीड टू बी विलिंग टू हियर, ठीक है। कानों के ऊपर अगर उन्होंने लगाया हुआ है, एयरपॉड्स लगाए हुए कानों में या हेडफोन लगाया हुआ है, तो बस फिर तो बात ही खत्म होगी। तो आजकल तो ऐसा भी देखने को मिलता है। एंड दे नीड टू बी अटेंटिव। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरा रिस्पॉन्डिंग है। अब दूसरी चीज ये है कि रिस्पॉन्ड, जवाब भी दें, तो कुछ ना कुछ आपने उनसे जवाब इलिसिट करने हैं। दैट्स व्हाट वी एज टीचर्स ट्राई। हम पूछते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस, इसीलिए सेशन को इंटरैक्टिव बनाते हैं, ताकि कोई कुछ भी ना हो तो बेटा आपका नाम क्या है, कम कम शुरू के लेवल पे अपना इंट्रोडक्शन दे दें इस तरीके से, और फिर आसान आसान सवाल पूछकर। तो दे नीड टू बी विलिंग टू रिस्पॉन्ड एंड दे शुड बी रिएक्टिंग। और इसी तरीके से उनके अंदर एटलीस्ट इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो जवाब दें। बहुत से स्टूडेंट्स तो इस काम के लिए भी मोटिवेटेड नहीं होते, तो उसके लिए आप फिर ग्रुप डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर, इस किस्म की चीज करते हैं ताकि उससे कुछ रिस्पॉन्स आए। फिर तीसरे नंबर पे वैल्यूइंग है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि नाउ यू विल बी ऑन अ वॉच, कि भाई जब मैं कोई कॉन्सेप्ट फेंकता हूं क्लास में या बच्चों के सामने, इसको कुछ वैल्यू करते हैं, इनके कुछ उससे, उसके हवाले से कुछ ख्यालात हैं, ठीक है। वट एवर कॉन्सेप्ट इट इज, आप इसमें स्टार्टिंग के लिए, अगर बड़े बच्चे हैं तो आप बहुत कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स भी दे सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस मैंने देखा है, अगर क्लास बहुत डल है और आप अंदर जाके औरत मार्च के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दें, अभी रिसेंटली क्योंकि गुजरा भी था, तो सारे जाग जाते हैं, ठीक है। 2 कैंप भी बन जाते हैं बड़े क्लियरली, और सारे वैल्यू करने लगते हैं, यानी सारे अपनी अपनी जो भी जिस चीज को वैल्यू करते हैं वो सामने आती है, एंड यू कैन एक्चुअली अचीव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आउट ऑफ दैट। तो आपका तो एज ए टीचर नेसेसरली ये काम नहीं है कि आप उनको बताएं कि कौन सा कैंप ठीक है और कौन सा गलत है, लेकिन आप उनको गाइड कर सकते हैं जो उससे अच्छी बातें पिक कर सकते हैं। तो और इसी तरीके से इससे उनकी भी कमिटमेंट टुवर्ड्स सर्टेन आइडियाज एंड आइडियल्स आपको नजर आ जाती है, और यही तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव सेंस। फिर ऑर्गेनाइजिंग, तो इसी तरीके से आप फिर देखते हैं कि वो कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो किस वाले कॉन्सेप्ट को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते हैं। ये भी वैसे मजे की बात है कि औरत मार्च की डिस्कशन के अंदर ही बड़ी जल्दी आ जाता है कि रोल्स क्या हैं, जेंडर्स के कोई रोल्स हैं नहीं है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारी, जैसे अभी वो गुजरा वैलेंटाइंस डे, ये भी एक। तो बस जो भी हो रहा है, मैं अक्सर कहता हूं कि एक टीचर का ये काम है कि वो क्लास में आके पहले 5-10 मिनट टैप करने की कोशिश करे स्टूडेंट्स के जहनों को कि इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि जो उसमें चल रहा है अगर आप उससे कनेक्ट नहीं करेंगे अपने मैसेज को, तो वो अपने आप में चलता रहेगा, वो फिल्म रुकेगी नहीं और आपकी फिल्म जो है ना उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। लेकिन अगर आपने कनेक्ट कर दिया, पूछ के अच्छा क्या हो रहा है, किस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है, पहले 5-10 मिनट बस ये काफी है इस चीज के लिए। और फिर आपने कमाल कर देंगे अगर अपने लेक्चर को किसी 1-2-3 डॉट्स पे उसके साथ कनेक्ट कर दें जो कि इस वक्त उनके जहनों में चल रहा था। ये तो बस फिर आपने ऐसा लेक्चर दे दिया कि वो सारी उम्र उनको याद रहेगा। और यहाँ पे मिसाल यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस, आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं और फॉरन जो है ना सारे एकदम से, नहीं वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं ये बैलेंस हो ही नहीं सकता, नहीं ये हो सकता है, ये ऐसे होने वैसे होने। दे विल स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग देयर थॉट्स, प्रायोरिटाइजिंग वट एवर दे वैल्यू। और आखिर में आखिरी लेवल वो है जिसमें हमने आज बहुत बात की कि कैसे आप इंश्योर करेंगे कि ये सारा कुछ जो आप उनको इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड एंड इमोशंस, बिलीव्स देना चाह रहे हैं, ये वो इंटरनलाइज करें, ये उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाए। दे स्टार्ट, ये वो हो जाए जो मैंने गाड़ी वाली, ड्राइविंग वाली मिसाल में दी कि बस अब उनको सोचने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, अब वो नेचुरल, वो बस ऐसे ही है जैसे कि पॉर्क हो। तो इसको हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। लास्ट पॉइंट, लेकिन ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, अगर ये इंजीनियरिंग के होते तो रेलेवेंट होता, क्योंकि वहां पे हमें मेजर भी करना है, हमने फिर वहां पे बताना भी है कि हमने इफेक्टिव डोमेन पे उनको कैसे मेजर किया है। तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्कॉलर्स के आपस की बहस है, और वो बहस ये है
कि वो कहते हैं कि अगर आपने क्राइटेरिया मेजरमेंट का स्टूडेंट्स को डिस्क्लोज कर दिया, मिसाल के तौर पे कि जी टाइम पे आने के 5 नंबर हैं अफेक्टिव डोमेन के, तो फिर ये अफेक्टिव डोमेन रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसने इंटरनलाइज कर दिया, बल्कि वो टाइम पे इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये एक डिबेट है, लेकिन ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो इस पर मैं नहीं जाता। लेकिन इसका लास्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ, और वो ये है कि दुनिया भर में ना आपको ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी लोगों के बिहेवियर की जो कि आपको बताती हैं कि उन्होंने इफेक्टिव लेवल के ऊपर कितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज किया और कैरेक्टराइज, अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाया। सो वन एग्जाम्पल, मे बी नॉट अ वेरी गुड वन, लेकिन जब शिंजो अबे जो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था जापान का, इसको एक पॉलिटिकल रैली के दौरान किसी ने गोली मारी और ये मर गया। ये अभी रिसेंट वाकया, शायद 6 महीने पुराना। तो जब ये हुआ तो उस इलाके के पुलिस चीफ का इस्तीफा देना तो उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनता है। हमारा तो होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इंतहाई डिठाई से कहता कि इससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है और मेरा तो काम है कि मैं अब यहाँ बैठ रहा हूँ, लेकिन उसने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आपको पता है पूरे जापान का जो पुलिस चीफ था, जिसका वाकई कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था इस चीज से, उसने भी इस्तीफा दे दिया। तो नहीं, मैं मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है, इट हैपेंड ऑन माय वॉच एंड आई हैव टू गो। ठीक है, तो ये इफेक्टिव डोमेन है। उसको उसके प्रिंसिपल्स जो उसके अंदर इनकलकेट हुए थे, अगले दिन वो अपने आप को आईने में नहीं देख सकता था अगर वो स्टिल वो यूनिफॉर्म पहन रहा होता। ये कमाल है जो कि कुछ नेशंस ने अचीव किया है और हम इसमें थोड़े से पीछे रहे हैं। हालांकि मैंने कहा ना, हमें शायद बहुत आगे होना चाहिए था, इसलिए कि हमारे असलाफ और हमारी रूट्स वगैरह, उसके अंदर ये सारी चीजें और ये सारी एग्जांपल्स हमें बहुत मिलती हैं। एंड दिस इज व्हाट आई ट्राइड टू डू टुडे। तो वे फॉरवर्ड किया जी, इफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन इफेक्टिव डोमेन इज लो, हु इज टू ब्लेम? तो किसको ब्लेम करेंगे अब आप? स्टूडेंट्स को? बस ये हम अपने आप को, इसी तरह बच्चों का भी है। Seriously, it's a reflection of our attitude, our emotions being on the right track or path. ये हमारी एक रिफ्लेक्शन है, इसमें स्टूडेंट्स का कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सैड सी लर्निंग है। तो रिकैप क्विक से अगर मैं दे दूं तो हमने डिस्कस किया अफेक्टिव डोमेन को, अक्लिया वर्सेस नफ्सिया, अफेक्टिव डोमेन वर्सेस जो डिस्कशन थी कॉग्निटिव डोमेन की हुई काफी डिटेल में। इन ऑर्डर टू डेवलप नफ्सिया वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस इमोशंस। तो अगर हमने दूसरे के इमोशंस को और एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करना है तो फिर हमें उसके एटीट्यूड और इमोशंस का ख्याल रखना है, उसको केटर फॉर करना है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना है इस प्रोसेस के अंदर, वरना हम ये चीजें चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब एक दफा नफ्सिया डेवलप हो जाता है तो बहुत देर पा होता है। किसी शख्स को बाहर मुल्क जाके नमाज से हटने में शायद 2 दिन लगते हैं, हट जाते हैं लोग, कहते हैं यार वहाँ माहौल ही नहीं था, नहीं पढ़ी जाती, ये वो अजान की आवाज़ नहीं आई, ऐसे बहुत हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर से पॉर्क्स नहीं हटता, ये नहीं हटता। ठीक है, क्यों? इसीलिए कि इमोशनल लेवल पे जो कनेक्ट है उसके साथ। तो एंड इट टेक्स टाइम टू बिल्ड, नफ्सिया बहुत टाइम लेता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज पेरेंट्स हमारे पास बहुत टाइम होता है। पहले 10-15 साल बिल्कुल हमारे हाथ के अंदर होता है, सिर्फ पहले 5 साल तो सिर्फ हमें देखता है, सिर्फ हमें सुनता है सब कुछ, और साथ में रिपीटेड एक्शंस, तो आपने रिपीटेडली करना है उस चीज़ को। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बड़ी वर्थ वाइल इन्वेस्टमेंट है, ये इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे। थैंक यू वेरी मच। सवाल, कमेंट्स, फीडबैक? ये बहुत ही अच्छा साइन भी हो सकता है और बहुत ही बुरा साइन भी हो सकता है कि कोई सवाल ना हो अगर। हाँ, श्योर। और माइक भी, एक और भी है माइक, को किसी को दे दो। वो माइक आ गया। ये मैडम, It's more like a comment. I really, it was a really nice and reawakening kind of a lecture. उसमें मुझे एक शेर जो आपने अक्लिया और नफ्सिया की बात की है, मेरे ख्याल में इकबाल ही का शेर है कि बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा।
बड़े मुजी को मारा, नफ्से अम्मारा को गर मारा, निहंगो असदहाओ शेर और नर मारा तो क्या मारा. Anybody else would like to pass any comment or like? जज़ाकल्लाह फॉर ऑल दैट. बहुत एक इंफॉर्मेटिव, मैं से नहीं कहूँगी, इट्स अगेन इफेक्टिव लेवल पे आके एक बहुत अच्छा वो लेक्चर था जिसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग ने रिकलेक्ट करते हुए अपने एकेडमिक, अपने करियर से, और फिर जब हम इस उसमें आए हैं एकेडमिया में एज अ पार्ट ऑफ एज बीइंग टीचर्स, बीइंग इन दिस रोल, तो दिस श्योरली इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे. थैंक यू फॉर दैट. इससे मुझे थोड़ी सी एक एग्जांपल अपनी एक बहुत पुरानी टीचर की याद आ गई. आई रिमेंबर हम लोग 9th-10th में होते थे, हम लोग एक टीचर हुआ करती थी, एंड मुझे अक्सर होता था कि व्हेन शी वाज नॉट टीचिंग अस, तो मुझे एट टाइम्स गुजरते हुए कहीं पे कॉरिडोर में वो मुझे किसी बच्चे के साथ साथ खड़े होके उससे बात करते हुए नजर आती थी. तो मैं हमेशा सोचती थी ये क्या करती है, क्लास के बाहर खड़े होके क्यों बात करती है. व्हेन शी स्टार्टेड टीचिंग अस इन 9th और 10th, तो तब पता चला कि क्लास में जब भी किसी बच्चे का कोई बिहेवियरल इशू होता था, कोई साइकोलॉजिकल इशू होता था, वो कभी क्लास के सामने उसे कुछ नहीं कहती थी. वो हमेशा उसे क्लास से बाहर लेके जाती थी, बड़े आराम से उसे पूछती कि बेटा आपको क्या हुआ है, क्या मसला है. वन ऑन वन कॉन्टैक्ट होता था, और उस वन ऑन वन कॉन्टैक्ट के बाद जब वो बच्चा वापस क्लास में आता था, तो वो एक बिल्कुल एक एज ए न्यू ह्यूमन बीइंग वापस आता था. उसका जो बिहेवियरल इशू होता था, इट वॉज नेवर देयर अगैन. और अगर उसकी कोई और साइकोलॉजिकल इशू होता था जिससे वो उस टाइप पे गुजर रहा होता था, तो उसका वो उससे बहुत ज़्यादा ओवरकम कर चुका होता था. तो आई रियली फेल्ट फॉर दैट. मतलब मुझे मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगी उस टीचर की कि वो एक बहुत वन ऑन वन कॉन्टैक्ट में हो जाती है. आज आपके इस पूरे लेक्चर में मुझे वो टीचर बहुत दोबारा याद आई, और मुझे ये चीज़ फील हुई कि यकीनन वो हम लोग को एक बहुत एक इमोशनल लेवल पे लेके आके हम लोगों से कनेक्ट करती थी. इसीलिए शायद ये कि अभी तक हमें वो याद है, और प्रॉबेबली शायद हमें भी उस तरीके से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. जज़ाकल्लाह. थैंक यू वेरी मच. मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा, और वो ये कि देखें, पहले ज़माने में हमारे पेरेंट्स के टाइम पे और हमारे टीचर्स के टाइम पे आपको ऐसी मिसालें ज़्यादा मिलती थी. ऐसे पेरेंट्स की भी जो कि बहुत सुनते थे और बहुत हौसला रखते थे, और ऐसे टीचर्स की भी. अब ये कम हो गई हैं. क्विकली कोई वजह बताना चाहेगा, कोई एक मेन वजह जिस वजह से ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही. बहुत अच्छा पॉइंट आपने. लेस टाइम की बात की, मैं इससे एग्री करता हूँ. लेस टाइम में एक फैक्टर ये है कि खवातीन भी जॉब कर रही हैं. इससे बड़ा फैक्टर क्या है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ टाइम दोनों को अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? एग्जैक्टली ये जो छोटा सा इब्लीस हम सारे अपने साथ घुमाते हैं, हुआ क्या है, इसने हमारे टेम्परामेंट को चेंज किया. असल में ना, इसने हमारे टेम्परामेंट को, हमारे पास अब सोचने का, तहम्मुल से जवाब देने का, तहम्मुल से सुनने का, ये सारा है ही नहीं. ये मिजाज ही खत्म हो गया. तो इसकी वजह से हम चाहते हैं, देखें, हम सारे एक स्टेट ऑफ अर्जेंसी में हैं. इवन राइट नाउ भी, इवन मैंने भी ना 2-3 दफा टाइम देखे, हालांकि आगे कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन इसी तरीके से सारे बैठे होंगे ना, सोच रहे होंगे कि बस ये खत्म हो तो फिर जाएं, तो फिर पता नहीं क्या. सारे एक स्टेट. और ये अर्जेंसी हमारी अपने बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा हो जाती है. जल्दी करो बेटा, खाना भी खा रहा है तो जल्दी करो, जो काम आराम से करने का है, इबादत भी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, ठीक है, एवरीथिंग बस जल्दी करो. तो इसने, ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज है. और जब जब टाइम होती, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट करने के लिए टाइम सबसे बड़ी चीज है. आप टाइम ले, इट टेक्स टाइम, यू लिसन टू द अदर पर्सन, ठीक है. ये सारा कुछ चला गया है. ये एक बात मेरे जहन में आ रही थी, और एक और बात आ रही थी कि जैसा मैंने आपको उस एग्जाम्पल के जरिए भी कहा, यू नीड टू सिट डाउन फॉर योर सेल्फ एंड थिंक कि वो कौन से इमोशंस हैं, वो कौन से वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन हैं, वो कौन सी आवाजें हैं जो आप, जब सिचुएशंस होती हैं आपके सामने और आप निकालते हैं, जो कि आपके बच्चों को इफेक्ट कर रहे होंगे. सो टू गिव एन एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल अगर दूं, आप एक सिग्नल पे खड़े हैं और एक गाड़ी वाला सिग्नल को तोड़ते हुए, मतलब लाल सिग्नल पे गुजर गया. ये एक इंतहाई एजुकेटिव मोमेंट है आपके बच्चे की जिंदगी में, अगर वो आपके साथ बैठा है. और इसको मिसमैनेज करना बहुत आसान है.
तो क्या कहना चाहिए ऐसे में? पहले स्टार्ट करते हैं मेरे बेवस गाली दे के कि यार ये इसने क्या कर दिया, ठीक है, कितना गलत काम किया, और नाउ यू ट्राई टू मेक इट बेटर। क्या कहेंगे आप जो कि पर्सपेक्टिव चेंजिंग हो? क्योंकि हम अब ये तो हम एजुकेशन के लिए बच्चे की नहीं कह रहे ना, वी आर नॉट एक्चुअली, तो हम इमोशंस, लेकिन ये उसके पर्सपेक्टिव को शेप करेगा और वो जिंदगी भर इस तरह की चीजें ये हम कर रहे होते हैं। ये परवरिश है असल में। जी क्या कहेंगे? व्हाट्स द बेस्ट यू कैन कम अप विद? जी दिस इज डेंजरस, ठीक हो गया, ये कहीं मिड लेवल पे मैं कहूंगा लाया करता है, और इसको बेहतर करें। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, और जी आवाज नहीं, सॉरी, ठीक है, जान का खतरा, और वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, वो रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो छोटे हुए सीख रहा है अपने वालिदैन से। वो देखेगा कि मेरे वालिदैन ने जैसे, मतलब हम बच्चे को ये कहें कि वो बच्चा जो उस गाड़ी में बैठा है वो नहीं करेगा, ये आप कह रहे हैं? सॉरी, नहीं, जो देख रहा है, हाँ वो तो हमारा बच्चा है ना, अब हम उसको कह रहे हैं ना, तो हम उसको इस इवेंट के बारे में क्या कहें, क्या कमेंट करें कि उसका इसकी शख्सियत पर पॉजिटिव तरीन असर हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ। आप उसकी ये बेसिक वजह बता दें कि बेटा हो सकता है वहां पर जो उसके साथ ड्राइव करके इशारा तोड़ के जा रहा है, हो सकता है वो किसी उसके पास पेशेंट हो तो उसने इमरजेंट उसको वहां पे पहुंचाना हो, बेटा सिर्फ इस वजह से हो। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज यू से, आप कहेंगे बेटा दुआ करो, पता नहीं क्या इमरजेंसी है जिसकी वजह से इसको सिग्नल तोड़ना पड़ा। अब आपने सारे काम कर दिया, आपने उसको ये बता दिया कि सिग्नल तोड़ना बहुत ही बुरा काम है, ये आपने पहली चीज बता दी। फिर आपने उसको ये बता दिया कि कोई सिग्नल ऐसे नहीं तोड़ता मस्ती में, और ये हालांकि करते हैं लोग, लेकिन आपने उसको नहीं, आपने शेप कर रहे हैं ना। और फिर आपने उसको ये दे दिया कि यार उल्टा तुम्हारे अंदर कंपैशन होना चाहिए कि अगर कोई शख्स कोई गलत काम कर रहा है तो ही मस्ट बी इन सच ए टेरेबल सिचुएशन कि इसके अलावा कोई हल नहीं। एग्री करते हैं? ठीक, तो ये सारा वक्त हो रहा होता है असल में, ये ट्रू परवरिश होती है। वो बातें जो हमको कहते हैं वो मैटर नहीं करती ना, सच बोलो या सच बोलने के ऊपर मजमून लिखो, इससे कुछ नहीं होगा। असल बात यही है कि घर पे जो है बेटा कह दो कि बाप घर पे नहीं है या बाप सो रहा है, ये असल जो है ना वो चीज है। जी सॉरी, मैंने सवाल जवाब में से भी बहुत टाइम ले लिया। यहाँ पे क्वेश्चन है, माइक अगर इनको दे दे। मेरा एक सवाल है आपसे, बिकॉज दिस इज समथिंग प्रेडिकेमेंट दैट आई फेस व्हेन आई एम आउट विद माय चिल्ड्रन. So sometimes when we're in a marketplace, यहाँ पे काफ़ी बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, तो मेरे बेटे की एज के बच्चे आके भीख मांगते हैं और मैं उनको पैसे नहीं देती कभी, क्योंकि वो बच्चे हैं, मैं उनको इनकरेज नहीं करना चाहती बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग. फिर मेरा बेटा पूछता है कि मामा व्हाई आरंट यू गिविंग हिम मनी, व्हाई इज ही आस्किंग फॉर मनी. इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। दो तीन बातें मेरे जहन में इस हवाले से, एक दो बातें पहले कहूंगा फिर सवाल। एक बात ये कि जनरली किसी के साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी इस बहस में कोशिश करें ना पड़े कि ये बंदा डिजर्विंग है या नहीं, इस बहस में ना पड़े, ठीक है। जनरली इस बहस में अच्छा चक्कर क्या है, हो सकता है आपकी बात बिल्कुल ठीक हो, वाकई 100% हो, लेकिन ये एक रिस्की बहस है। बस अगर कोई सवाल कर रहा है तो आपने नहीं देना ना दें, बहस में नहीं पड़े इस बात में। आप समझ गए ना पॉइंट, ये तो पहला एक पॉइंट है जनरल। बहुत से लोगों को देने का दिल नहीं चाहता क्योंकि लगता है कि वो कुछ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी ना, आप ना दें, इस पे जुर्म गुनाह कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई कमेंट पास कर दिया और वो ठीक ना हुआ और वो हमसे भी ज्यादा जरूरतमंद हुआ या सबसे ज्यादा, तो मस्त एक तो ये, तो बच्चों के साथ कोशिश करना इस डिबेट में नहीं पड़ना, खासतौर पर बच्चों के साथ, क्योंकि दे आर टू यंग टू अंडरस्टैंड। दूसरा, कोशिश करेंगे जनरली हर किसी को दें, मतलब दूसरी इंकरेजमेंट ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने अपने पास कोशिश करें। आसान सा तरीका ये है कि वो 10-10 के नोटों वाली जो है ना, बस आपने एक गड्डी रखी हो और बच्चों को भी ये बात पता हो और बस वो उसमें से वो देते रहें। ये दो बात। अब आपने जो पॉइंट किया बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों वाला। हमने ऐसा किया था बच्चों के लिए, खासतौर पे जब वो इस एज में थे, बड़े हो रहे थे,
कि हम अपने पास जो है ना एडिबल्स रखते थे। तो आप अपने पास माइलो का कार्टन रखें, आप अपने पास, जो कि अब तो बहुत महंगा हो गया है, उससे इतनी महंगाई भी नहीं थी, लेकिन बिस्किट के पैकेट रखें, बिस्किट बहुत सस्ते, टिक्की पैक्स रखें और बस वो दिया करें। उसका फ़ायदा डबल फ़ायदा है। एक, क्योंकि आपको जनरली ये फिक्र भी है कि यार कोई बंदा इनसे आके ये पैसे ले लेता होगा ना, ये प्रोफेशनल्स हैं, तो वो जो आपने खाने की चीज़ उसको दी वो उसी को मिलेगी, वो उसी की न्यूट्रिशन का काम करेगी। और दूसरा, आपने अपने बच्चे को भी सिखाया और साथ में ये भी सिखा दिया कि ज्यादा इनोवेटिव और बेहतर तरीके से मदद करनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि आप कैश दें। तो मेरे ख्याल में ये इसका है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, Jazakallah khair. Thank you so much for a very enlightening and refreshing session. And definitely, I would definitely agree to whatever you have said. Or connection, it certainly comes before correction. इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बस एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे आपने वो enlist किए हुए थे कि which is the most difficult way of inculcating something in children, और उससे related जो तो मोस्टली लोगों ने कहा कि उनको मेमोराइज कराना कुछ जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है शायद। नहीं, शायद और सबने कहा कि आसान है। नहीं सॉरी, आसान है बिल्कुल, लेकिन आई वुड डिसएग्री टू दैट, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर कोई चीज़ बच्चों ने इंटरनलाइज नहीं की हुई एंड दे डू नॉट एग्री टू दैट थिंग, तो उनको वो करवाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ मेमोराइजेशन में जो है वो चीज़ इन्वॉल्व है कि आप उनको बताए बगैर, विदाउट मेकिंग देम अंडरस्टैंड अ सर्टेन थिंग, यू आर ट्राइंग टू मेक देम डू दैट थिंग, जैसे मेमोराइजेशन। और जो तीसरे वाला था जिसमें लोगों ने कहा कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा आसान है। इट ऑल्सो रिलेट्स टू द होल सेशन कि जब आप खुद एक उनको वो करके दिखा रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, आप उनके सामने कोई चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में मुश्किल इसलिए शायद लगता है कि वो लॉन्ग टर्म है और उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट रिक्वायर्ड है। लेकिन मुझे लगता है कि दैट्स द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग विद द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो जिस चीज़ को बाय नहीं करेंगे, जिस आइडिया को, दे नॉट गोइंग टू डू दैट। आई अंडरस्टैंड जो आप कहना चाह रही हैं। मेरे ख्याल में वो ये है कि अगर कंडीशंस ठीक हों तो फिर ऐसा होगा जैसा आप बता रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक घर के अंदर एक माहौल है तकवा का, तो उन पेरेंट्स को शायद बहुत ही कम मेहनत करनी पड़े अपने बच्चों के अंदर वो डेवलप करने में। लेकिन मसला इस वक्त ये आ रहा है कि ये वाला माहौल है नहीं, तो मतलब इट हैज़ बिकम सो अननेचुरल। तो चीज़ों रोट लर्निंग इज़ द नॉर्म, और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और कैरेक्टराइजेशन या इंटरनलाइजेशन इज समथिंग जो कि जिसके लिए हमें इतने इनोवेटिव आइडियाज बयान करने पड़ रहे हैं। इससे मे बी, लेकिन मैं एक सिंपल सी इस पे एक सवाल सबके लिए ओपन सवाल, वो ये कि कितने लोग होंगे दुनिया में जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ है? कितने हैं जो कि कुरान को समझते हैं और कितने हैं जो कि मुकम्मल कुरान के मुताबिक अमल करते हैं? तो कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा है? अनफॉर्चुनेटली, या मतलब ये वाली कैटेगरी सबसे ज़्यादा है। बीच वाली फिर भी एग्जिस्ट करती है, फलाना आलिम, फलाना अलामा, लेकिन जो वाकई उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कम है। अनफॉर्चुनेटली हैं, बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास तौर पे आम आवाम के अंदर बहुत हैं, लेकिन कम। जी, आपका अच्छा। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल था, आपने ये छोटे इब्लीस का जिक्र किया यानी मोबाइल का, तो मोस्टली ऐसा होता है ना कि आजकल घर में जो बच्चों की तरबियत है उसके लिए वालिदैन के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। अगरचे टाइम होता है लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया है कि वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। इवन कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसको कार्टून लगा के दे देंगे। इसी तरह और भी बहुत से, यानी कि हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो बच्चों की जिम्मेदारी बनती है हमारे वालिदैन के ऊपर, वो उसको पूरा नहीं कर रहे। यानी अगर एक बंदा ज़्यादा अमीर है तो उसने छोटे से बच्चे के लिए एक बंदा रखा होगा स्पेशल जो उसकी केयर करेगा। इसी तरह उसने मई रखी होगी जो उसकी केयर करेगी। और खुद जो पेरेंट्स हैं वो ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अपने आप को यानी कि बच्चे की तरबियत से वो दूर रखते हैं। अभी सवाल ये है कि इस मोबाइल के इस्तेमाल को कैसे कम किया जा सकता है और बच्चे की तरबियत की तरफ जो है ना बंदा अपना रुख उसको टाइम दे सके। तो कुछ सजेशन अगर आप। सही है। अच्छा, ये हमारी अपने घर में भी बहुत डिस्कशन होती है, इस पे काफ़ी होता है। पहली बात तो ये कि ये कोई आसान काम नहीं, इट्स ए ह्यूज चैलेंज, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसका कोई पेटेंट तरीका भी नहीं है ऐसा करने का, और ना ही कोई पेटेंट स्केजल एग्जिस्ट करता है। तो जो भी बातें मैं यहाँ पे करूँगा भी वो सारी ऐसी हैं कि वो आप कह लें कि वो फैक्टर्स हैं
ठीक है, और इन फैक्टर्स को आप हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत जितना जितना इम्प्लीमेंट कर सकें आपको करना है, गिवन दी सर्कमस्टांसेस। और साथ ही में मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके घर में एक माहौल ऑलरेडी है, मिसाल के तौर पे 15 साल का बच्चा है और उसके पास अपने नाम का मोबाइल फोन है, तो फिर मेरी बात, ये वाली बातें इंप्लीमेंट नहीं होंगी, फिर हमें कुछ और डिस्कस करना पड़ेगा, दैट वुड बी अ सेपरेट क्वेश्चन। तो आपकी बातों के जवाब में पहली चीज़ ये है कि पेरेंट्स को तकरीबन 80-90% तो अपने आप पे काम करना है। तो अपने मोबाइल का यूजेज उन्होंने कम करना है, ख़त्म करना है, जो भी है, देयर नीड टू बी सम प्रिंसिपल्स। मैं ये कहता हूँ जब भी मैं कोई ऐसी बात करता हूँ जिस पे कि मैं खुद पूरी तरह अमल पैरा नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं बता दूं कि आई एम नॉट रियली गुड एट दिस। लेकिन पहली सवाल ये कि क्या घर में कोई असूल हैं? पेरेंट्स के मोबाइल यूजेज के ऊपर ये असूल ही नहीं। अगर असूल नहीं है और हर वक्त बचता है और हर जगह बचता है और हर वक्त उसको अटेंड किया जाता है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुहज़्ज़ब घराने हैं उन्होंने असूल बनाए हुए हैं, सो कुछ टाइम बनाया हुआ है। पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जी इसके बाद कॉल नहीं आएगी, इसके बाद कॉल नहीं पिक की जाएगी, और अगर कोई ज़रूरी कॉल है तो बड़ा सिंपल सा असूल कि आपने स्टेयर केस में जाके सुननी है। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक मुहज़्ज़ब घरानों में ऐसा किया हुआ है। तो उसका फ़ायदा क्या है कि कॉल आती है और आप देखते हैं यार इसको तो मैं जो है ना स्टेयर केस में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसके लिए तो आप नहीं उठाएंगे, बस ठीक है, आपको उठ के जाना है। और अगर वाकई कोई ज़रूरी कॉल आती है तो फिर आप जाएंगे, आप घर से बाहर या स्टेयर केस जहाँ पे भी आप वहाँ पे जाएंगे और कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप पे करने की ज़रूरत है इसमें, जब वो हो जाएंगी तो फिर आगे मामला वैसे ही ठीक हो जाएंगे। अब जो बच्चों पे करने की ज़रूरत है वो ये कि पहली चीज़, आपने छोटे बच्चों के लिए जितना डिले कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में देना, उतना डिले करना है। तो मेरी, और इट इज़ पॉसिबल, मेरी जो सबसे छोटी बच्ची है वो अभी तकरीबन 19 महीने की है और वो अभी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़ीरो करती है। अब ये आप कहेंगे, हो सकता है जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं वो सोचेंगे यार इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। आप जाके देखिए 6 महीने से तकरीबन बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होता है। तो हमारी वाली ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ, उठाती है, ला के देती है, ये करती है, लेकिन कोई चैनल नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है जो वो देखती हो। अगर वो कोई वीडियो देखती है तो अपनी वीडियो कभी कभी देखती है, तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको ये समझ में आ गई तो कहती है मुझे दिखाओ, और उसको दिखाते हैं उसकी अपनी वीडियो, और नहीं। तो आप जितना डिले कर सकते हैं, ज़ाहिर है जितना डिले में कहीं शायद 2, 3, 5, 7 साल तक हो सके ना, बहुत बेस्ट केस में, और उसके बाद फिर ना हो सके। तो जब नहीं हो सकेगा तो फिर आपने पहला काम ये करना है कि आपने टाइमिंग रखनी है, ठीक है। तो लेट्स से दिन का 1 घंटा, बहुत सारी एप्स भी हैं जो आपकी मदद करती है इस चीज़ में, सब ये दूसरी बात हो। तीसरी बात, वो टाइम और वो घंटा अनसुपरवाइज नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये अब उसके पास है और वो स्वाइप करते 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 पता नहीं कहाँ से कहाँ और किसी सेक्सुअल कंटेंट पे पहुंच जाए बच्चा और सारा कुछ, ठीक है, वो तो 2-3 स्वाइप्स अवे होती है वो चीज़, ये भी नहीं हो सकता कि ऐसा हो। तीसरी बात, आपने, मैं अक्सर एक इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ और आप लोग शायद इससे एग्री करें, हमारे ज़माने में ना हमारे पेरेंट्स के लिए और उनको अपनी पेरेंटिंग में जो सबसे बड़ा दुश्मन फील होता था वो क्या था? मैं जब हमारा ज़माना कहता हूँ तो मैं इस वक्त तकरीबन 48 साल का हूँ, तो यानी कि 40 साल पहले क्या था? सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? टीवी था। आज हमें अपनी पेरेंटिंग के दौरान सबसे बड़ा दोस्त टीवी लगता है, ऐसा है ना? हम कहते हैं काश के बच्चे टीवी देखें। क्यों? टीवी बहुत बड़ा होता है, टीवी को आप लेके बेड में ऐसे करके नहीं देख सकते, टीवी का कंटेंट सारे देख और सुन रहे होते हैं, और टीवी सेंट्रल जगह पे पड़ा होता है। अब आपने दूसरा पॉइंट ये करना है कि अगर उसने कुछ देखना भी है वो 1 घंटा, तो बड़ी स्क्रीन पे देखे, फिक्स स्क्रीन पे देखे। बच्चों को लैपटॉप्स जल्दी ना लेके दे, तकलीफ करें, मुश्किल है, लेकिन उनको डेस्कटॉप लेके, फिक्स जगह हो, उसकी स्क्रीन फिक्स हो। ये छोटी छोटी चीजें ना बड़ा काम की है, जब मुझे समझ में आई और मैंने सोची और पूछी और डिस्कस की तो बड़ा काम करती। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, जब कभी आपने कंप्यूटर ले दिया बच्चे को, मोबाइल फोन ले दिया, 15-18 साल का बच्चा है, कुछ भी, कोशिश करें कि उसको ये पता हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये मेरा है, ये ना हो। मिसाल के तौर पे, पहले आपका मोबाइल जितना लंबा इस्तेमाल हो सकता है या वालदा का मोबाइल, फिर उसके बाद एक बच्चों का मोबाइल हो, अगर बच्चा एक ही है तो घर का मोबाइल, ये फोन घर का, कभी कभी आप भी इस्तेमाल करें, कभी कम्युनिटी चीज होनी चाहिए, कंप्यूटर भी कम्युनिटी। ये कॉन्सेप्ट कि ये मेरा है बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके आगे बहुत सारी रिपरकशंस है। और मैं जब ये कहता हूं ना, मैं आपको बताऊं,
क्योंकि मैंने बताया जर्मनी में पैदा हुआ, वहाँ पे परवरिश हुई, तो हमारे पेरेंट्स जो थे ना, उन्होंने ये जो पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत सब्सक्राइब किया। उस टाइम पे जब बाहर गए थे, और इंसान जब जाता है उधर तो बहुत सी चीज़ों से उनकी इम्प्रेस होता है, ठीक है, उनकी बिल्डिंगों से, उनके तरीके से, उनकी गाड़ी, तो आप इम्प्रेस होते होते फिर वो चीज़ें भी ले लेते हैं जो कि असल में, तो ये जो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे यहाँ प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। हमारे यहाँ प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि लड़का है और वो कहता है कि जी मेरा अपना कमरा होगा और मेरा बाप नॉक करके इजाजत बगैर अंदर नहीं आ सकता, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। तो और इसी तरह बेटी जो है वो वालदा के साथ, तो ये क्या बात हुई कि मोबाइल के ऊपर उसने कोड डाल दिया है और वो कह रहे नहीं ये मैंने इसलिए डाला हुआ है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये तीसरी चीज हो गई। और बस और फिर साथ, यानी ये वो स्टेप्स हैं जिनका मैं आपको कह रहा हूँ। घर में जनरली यूजेज कम हो, लेकिन आपने जो एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये कि देखें, हाउ विल यू सब्सटीट्यूट ऑल दिस, और व्हाट विल यू सब्सटीट्यूट इट विद। वो मुझे आप में से कोई अगर बता दे कि सबसे बेहतरीन सब्सटीट्यूशन इसकी और सबसे आसान, जाहिर है कि हम कह सकते हैं कि जी बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके जाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा महंगा काम है, बच्चों को घर से बाहर बैडमिंटन या टेनिस, यस ऑफ कोर्स जिसका जितना बस है, लेकिन ये हर वक्त नहीं हो सकता, सब नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन इस सब की क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पेडागोजिकली इफेक्टिव इंटरवेंशन और एक्टिविटी दैट यू कैन डू एट होम? सर, फैमिली टाइम में क्या जी? sir, maybe I would like to share one of my example. Maybe I won't take much time, but my son was doing his ICS in Howard College on Peshawar Road, and I came to know that he has got his personal, like Phone. friends and all that. And then my wife told me that probably he's doing a lot of discussion with his friends and all that. And then what I did actually, that one day I made him to sit with me, and I asked him that, Bache, you have got 3 uncles and 4, like aunts, and on the other hand, on the other side, like your mother's side, like you have got these many. So do you have their numbers? And he said no. And I said, put all those numbers. And when he put all those numbers, then I told him that, okay, now connect them on WhatsApp also. Because he used to he used to put such statuses that they were only for his friends. Now, one thing which I did, probably, he never put those statuses from that day onward. I stopped calling my family, and I made him, like to call once in a week to one of his uncles. उसका मुझे ये नुकसान हुआ है कि अब वो कहते हैं कि बच्चा तुम्हारा अच्छा है, वो पूछता रहता है, आप नहीं पूछते हो. But I did that, like that Purpose. he has got the numbers now. और जब वो स्टेटस डालते हैं तो मुझे भाई बता देते हैं कि ये बच्चे ने क्या किए, कोई परेशानी है इसको या क्या हो गया. That was there. I gave him my own computer when he started doing his BS computer science. तो मैं अभी कभी कभी वैसे उसे बता देता हूँ, यार मेरा कल लेक्चर है, तो प्रॉब्ली आई डोंट टीच लैंग्वेज, लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि वो कल शायद हमारा कोई वर्कशॉप हो रहा है, तो उसमें हमें नाउन्स की वो एक मिली है, तो इफ़ यू कैन जस्ट सर्च आउट फॉर मी, और फिर वो मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो. वो 3 घंटे लगा रहता है, पता नहीं इधर उधर से, और फिर साथ में एक्सप्लेन भी करते हैं कि उस किताब में ये लिखा हुआ है, इसमें तो प्रॉबली उसको उस तरीके से बहुत ज़्यादा वो आ जाती है. तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर वेज टू कंट्रोल एंड देयर आर वेज टू थिंक. सो प्रॉबली बिल्कुल ऐसे ही, फिर से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैंने शुरू में भी कहा और वाकई ऐसा ही है मेरे अपने घर में भी, कि देखें मुकम्मल पाबंदी नहीं, ना मकसद है ना कुछ, लेकिन डिले बहुत अच्छी है, जितना आप लेट कर सकें उतना अच्छा है. जितने फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उनको ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ की. वो जो मेरी बच्ची है ना, उसकी तबीयत, वो जो 19 महीने वाली है, अनबिलीवेबल तबीयत है उसकी, और मेन रीज़न उसमें यही है कि वो उसको सोशली कनेक्ट करना आता है हर एक के साथ इस एज से, क्योंकि वो बेचारी डिस्ट्रैक्ट नहीं है इन चीज़ों से. तो मतलब कम एज में ये बड़ा इशू है, आगे चल के होगा, और जब होगा तो आपने एग्जैक्टली जैसा इन्होंने बताया, आपने उनकी डिजिटल लाइफ्स का हिस्सा भी फिर बनना है, ठीक है. लेकिन आप जी आप बताएं सर. जो आपने रूल्स की बात की थी, तो एज सच रूल्स तो नहीं है, लेकिन आई टाइम एंड अगेन आई टेल देम कि अगर किसी को आपने एक बात पूछनी है, कॉल करनी है, मामू को या अंकल को, तो आपने एक कॉल दी,
दूसरी दी, तीसरी दी, उसके बाद आपने बंद कर दी, इसलिए कि ये हदीस है कि आपने दस्तक देनी है 3 दफा, कोई ना, इसको बुरा नहीं मानना, गाली नहीं देनी, गुस्सा नहीं करना कि उठाता नहीं है। दूसरा सर के जो नमाज के औकात होते हैं, मैंने सख्ती से उनको मना किया कि ना मुझे कॉल करेंगे आप, न किसी और रिश्तेदार को करेंगे, क्योंकि आपको टाइमिंग रफली पता होती है, ये 4:45 है, 6 बजे, तो उस वक्त आपने किसी को, और उनको मैंने बताया हुआ है कि चूँकि 3 औकात ऐसी होती हैं एक मुसलमान की ज़िंदगी में कि आप उस वक्त उनके घर विजिट नहीं कर सकते, तो अगर आप घर विजिट नहीं कर सकते तो आप उनको फ़ोन भी ना करें, ठीक है। तो ये साथ में जो फैमिली में बात चलती रहती है, तो मेरे दूसरे फैमिली मेंबर्स ने भी वही काम शुरू कर दिया, वो बहुत इशा अच्छी के बाद नहीं करेंगे, वो सुबह करेंगे, ठीक। तो इसी तरह की कुछ अगर हो तो अच्छा रहे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। I really enjoyed the questions, the interaction, तो इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात।